معزز خواتین و حضرات، خصوصاً فرمان صاحبہ، زرینہ تبسم صاحبہ، آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بزم علم و فن کی جانب سے آپ حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اے میری ماں بلتی یلتے کوہساروں کی زمین، تو فلک کی کہکشاں ہے یا ستاروں کی زمین، تیرے گیٹو ہے تمہاری سربلندی کا نشان، تیرے دیوسائی کا شہرہ لالا زاروں کی زمین، رس برے نغموں سے تیری گونجتی ہیں وادیاں، تو میون سترپا ہوتیم چونکا ہزاروں کی زمین، اور اس میں کھلتے ہیں زما چھنڈل محتم اور گلاب، ہے کہاں دنیا میں اس جیسی بہاروں کی زمین، اور منٹھو کھا تھور کو شگر گن تو خاموش خرمن کو دیکھ، بلتستان ہے خوبصورت آبشاروں کی زمین۔ میں بس میں فن کی جانب سے بلتستان کے جتنے قلمکار اسکالرس ہیں یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے، ہمارے پورا دماغ ہمیں جمع کیا ہے، دماغ کو جمع کیا ہے آپ کے سامنے، ان سب کی جانب سے، پورے بلتستان کی جانب سے محترمہ سلمہ آوان صاحبہ، نیلم محمد بشیر صاحبہ، سیما پیروز صاحبہ اور ڈاکٹر عظمہ سلیم صاحبہ تو ہماری ہے ہی، تو آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ 30 سال پہلے آئی، جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا سب کے سامنے ہے، انہوں نے پڑھا ہے، اندر ڈیپلی پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ آپ کے قلم میں کتنی طاقت ہے، مگر یہاں تک پہنچنے کا جو سبب بنا، یہاں میں میر اسلم حسین سہر صاحب کو میرے صدر ہیں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے لاہور سے خاتون کو یہاں بلایا، مشاعرہ کیا، وہ ان کا نام تھا محترمہ ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ، وہ یہاں آئی اور واپس جانے کے بعد ہم لاہور پہنچے، انہوں نے ہمارے اعزاز میں پروگرام کیا، رات کو ہمیں کھانا کھلایا، اس کھانے میں یہ محترمہ صاحبہ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا، کسی نے کہا یہ بلتی لوگ ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہو گئی، میرے بلتستان کے لوگ آئے ہیں، ہمارے ساتھ بغلگیر ہو گئی اور کہا میں اب کی بار اسکردو ضرور آؤں گی، اور آج ہی ہماری دعوت پر یہاں پہنچی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ نے ہمارے علاقوں کیسے دیکھا، وہ ہمارے سارے اسکالرس ابھی بیان کریں گے کہ کس طرح آپ نے کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کی عزت افزائی کے لیے تقریب سجائی گئی اور یہ تقریب ہے تقریب پذیر آئی یہ میرے بلتستان، جس کی مصنفہ ہے سلمہ آوان صاحبہ۔ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت تقریب کا آغاز ہوتا ہے، شاہنہ سے درخواست گزار آئے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، صدق اللہ العلی العظیم۔ جوزا، عظمہ اور زینت، آپ تینوں سے درخواست آپ آئیں، اور یہ تین ہمارے پاس گلدستے ہیں، اتفاق ہمارے پاس کیونکہ مہمان تو پر 4 ابھی بیٹھے ہیں، جی 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 آپ تینوں آئیں اور یہاں ان کے لیے آپ چار 5 مجموعے افسانے کے، اور وہ ہیں نیلم محمد بشیر صاحبہ۔ احمد بشیر ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں صحافت کے حوالے سے، اور سیما پیروز صاحبہ آپ بھی بہت بڑی لکھاری ہیں اور انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، ساتھ لے کر آئے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس تعداد کم ہے لہٰذا یہ ہم کالج اور لائبریری کو وقف کرنا چاہتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد اعلان کریں گی۔ میں علی خان سے درخواست کرتا ہوں، بہت دور افتادہ گاؤں نت سے آئے ہیں، ادھر شگر کے آئیں اور نعت بحضور سرور کائنات
پیش کرنے کے لیے صدر بزم الرحمان میر اسلم حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں آئیں اور خطبہ استقبال پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں تمام موجود افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج اس دن کا آغاز ہو رہا ہے جس دن شیخ تنہائی دنیا میں تشریف لائے اور اس بچے نے انتہائی خوبصورت سلام بھیجا. اس بچے کے لیے میں بدر فن کی جانب سے 500 روپے انعام اعلان کرتا ہوں. اس کی باتیں رہی مہمان جو یہاں تشریف لائے ہیں سلمہ ایوان صاحب اور ان کے ساتھی. مجھے انتہائی یہ باعث فخر ہے کہ انہوں نے بدر فن کی دعوت قبول کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور یہاں بہت اچھے اور ادبی شخصیات ادب شناس لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ آپ کے بارے میں کیونکہ آپ کی کتاب میں نے دیکھا نہیں ہے. احسان دانش صاحب نے مجھے دینے کا وعدہ کیا لیکن نہیں مجھے اس نے بھی اچھے لوگوں کو دیا. وہ اچھی طرح سے خیال کریں گے. اور مجھ جیسا آدمی کا ڈاکٹر سلمہ ایوان صاحب کے بارے میں کہنا یوں ہے بطور میرنیس تعریف کرے خاص تو ہے کام کی تعریف کم مانتے ہیں آج سخن عام کی تعریف. تشریف آئی کل ہم ادھر گئے سیر کے لیے خپلو. ان کے ہاں گھر میں ہم نے چائے شائے پی مگر کتاب کو کھول کر میں نے دیکھا تو جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے پہلی بار اس سچوں کو دیکھا تو نام پوچھا تو کہا شاہ جہان ہے. میں نے کہا کس نے رکھا ہے کس نے رکھا ہے. آپ کا نام نور جہان ہونا چاہیے تھا. دوسرے کا نام ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف آئی ہے. شکریہ ادا کروں گا. اور مقالے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. منقبت خان کے لیے یہ 200 روپے کا جو انعام ہے میرے پاس موصول ہوا ہے آپ لے لیں. بعد میں شمشاد صاحب کی جانب سے بہت خوبصورت لکھاری اخبارات میں لکھتے ہیں مختلف تقریبات میں پڑھتے ہیں انٹلیکچوئل ہیں مگر نوجوان ہیں. اور آج بھی آپ کے لیے جس تحریر کو لے کر آئے ہیں دعوت دوں گا جناب حاجی باقر صدیقی صاحب. السلام علیکم. جب خاموشی بول رہی ہو تو کائنات کو سنجیدہ سی چپ لگ جاتی ہے. اور اگر تم شعور رکھتے ہو تو شور مت مچاؤ اور اس خاموشی کا احترام کرو تاکہ جب تم بولو تو یہ تمہارے احترام میں چپ رہے. وگرنہ اگر خاموشی نے شور مچانا شروع کر دیا تو تمہاری غوغا کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. کتب بینی یہی سرگوشی تو بہتیریں ہی کرتی رہی ہے مگر یہ میرا بلتستان ہے. ایسی دوہری چپ لگا دیتی ہے کہ خاموشی بھی حیرت میں پڑ جائے. واقعی میں یہ کوئی آپ کا بلتستان ہے یا میں وہ بلتستانی نہیں ہوں. سوچو تو حسن کا یہ گھمنڈ کہ اس کی ادراک کے لیے بیان کی ضرورت نہیں مگر جب بیان حسن سے زیادہ حسین ہو تو حسن کی لبستگی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس حقیقت کا ادراک بارہا یہ میرا بلتستان ہے میں مجھے ہوا. یہ خوبصورت شاہکار اور میں ہمسن بھی ہوں اور ہمسن بھی. فرق صرف یہ ہے کہ نامساعد حالات میں وقت سے پہلے جہاں طفل سیانے کر ڈالے وہاں یہ شاہکار شبانہ روز اپنے حسن میں نکھار پیدا کرتی جا رہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کیف الورا ہے یہ حقیقی کردار ہے یا مجازی. تو انہی سے ذرا مخاطب ہو کے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. کیف الورا ان چاکلیٹی سنگلا پہاڑوں میں گری جنت نظیر وادیوں میں بسنے والے گوشت پوست کے موجودات کے لیے ہر لمحہ ظالم ہے اور پس منظر ظالم ترین. یہ آپ کا میرا من نہیں جو جھوٹے دلاسوں خوش فہمیوں اور خوشامدوں کے جھونکوں سے مچل جائے. ان شہداء کا خون اتنا گھاڑا ہے کہ نصف صدی سے زائد کا عرصہ بیتنے کے بعد بھی کل کی طرح گلابی چمک اور تازگی سے بھرپور ہے. البتہ غازیان ملت کی وصال و رحلت بھی خطہ بلتستان کا اتصال پاکستان یا انتقال پاکستان سے وابستہ گومگو کی کیفیت پر
बाल बराबर हर्फ नहीं डाल सकी है। पाकिस्तान मोहब्बत नहीं मंजिल था। अब यहाँ से मंजिल की तरफ दो ही रास्ते जाते हैं। सिरातुल मुस्तकीम के धनी हल्की रास्ते पर कुदरत नहीं रखते और ज़मीनी रास्ता इनसे आज़ादी, इत्तिसाल और इंतकाल पाकिस्तान के लिए बार बार लहू का खराज मांगता रहता है। ये मामला भी बिल्कुल ऐसा है कि आज़ादी के बाद बकुल आपके इस अफरा तफरी ने हमारे और बड़े हुए हाथ को झटक न सका। हमें ये थामना पड़ा, हमें बैठना भी उनके साथ पड़ा और उन हाथों को भी न झटक सका था कि जब उन्होंने अपना कोट हमारे शानों पर डाला था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस कोट के शोल्डर्स लश्कारे मारते चमचमाते सितारों से परे हुए थे। कैफुल उरा, न मैं रूहुल्लाह हूँ और न रूहुल अमीन, न उन गहरे ज़ख्मों का मसीहा हूँ और न मैं बल्तिस्तान की हकीकी आज़ादी की वही ला सकता हूँ। आपकी गुफ्तगू से मेरे घाव और हरे हो गए। मैं माजरत चाहता हूँ मेरे बल्तिस्तान से कि मेरी निगाहें जंग आज़ादी की जीत की खुशी में विजदान के बेआब गया मैदान में मुनाफिदा धूल उड़ाती रफ्स सुरूद की गर्द से यूं अटी है कि पहाड़ों की चॉकलेटी रंगत, गिरते जन्नों की रुमानवी मौसीकी और शाहबलूत के टिंड में दाख्तों को काफिराना नजरों से देखने की अदा कभी नसीब पाए। मेरी बेनूर निगाहें तुमसे ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा बल्तिस्तान वाकई इतना खूबसूरत है? कैफुलवरा, मेरे बल्तिस्तान और बैरूनी दुनिया के माबिन जनरेशन गेप तो देखें, जहाँ हिंदुस्तान में वाली हिंद और मुग़ल ताजदार शाहजहां 17वीं सदी के वस्त में अपनी बीवी मुमताज़ बेगम की मौत पर दीदावर व दीदनी ताजमहल सी इमारत तामीर कर लेता है और इधर 19वीं सदी के वस्त में कपूरों के ताजदार एक शाहजहां को अपनी बीवी बनाकर यब्बो कहलाता है। क्या फिर तुम मोहल्ला की हिफाजत न करने पर भी खशमगीन हो। जरा बताओ तो मेरे रूम में सब्सिडी का आटा है और मेरे हाथ में मिनरल वाटर की बोतल। मैं भला क्यों करे मोहल्ला की कदर करूं जहां मेरी फसलें मालिया और खारजन और दीगर मौसूलात कीमत में रुकती रहती। क्या ये जमीन हो खस्ताहाल और शिकस्त ज़दा इमारतें अपने अहद के गुरबाए शहर की हालिया शान शौकत पर पशिमान और नादिम थे। अहद रफ्ता में इन इमारतों की चमक दमक मजदूरों के घरों के दरोबान से झलकती बेकैफी से थी। कैफुलवरा, ये तेरा बल्तिस्तान है जहाँ तुम पाकिस्तान हो, इसलिए मेरी मोहब्बत हो और मैं आज भी फकत डॉक्टर इब्राहिम। क्या मोहब्बत वक़्त की सरगोशी में हम बेशक्लों की आवाज़ में ये सुन रहे हैं कि अपनी धरती से मोहब्बत करने के लिए अपनी ही धरती का नमकख्वार होना ज़रूरी है। तेरी तरह मेरे बादशाहों को भी मेरे वजूद का एहसास हर जगह हर बार रहता है। कसर शहनशाही में किन अखियों से मेरे वजूद को देखता भी है, लेकिन हर बार उनकी अदा और खुददारी मेरी मोहब्बत का असर ज़ाहिर कर देती है। कैफुलुरा, तेरे तख़य्युल को बाज़ सी परवाज़ है, तेरी गुफ्तगू में चंद की मिठास और शीरनी है, तेरी आंखों में वो अच्छे लगे हुए हैं जो खमी थल के कुल्चों और खबसे को एक नज़र में तोड़ लेते हैं। क्या दुपट्टों पर टंगती मोतियों का शजरा बता देती है। तुम्हारा ज़ौक़ नगारिश और फितरत शनासी हमारी मेहमान नवाजी में घुल मिलकर इंसान दोस्ती की आला तरीन शाहकार तराश चुका है। हम तो तही दस्त ऐसे हैं कि असलूब निगारिश और फ़न तहरीर पर बोलने का गोया हमारे पास लाइसेंस नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मेरा बल्तिस्तान सफ़रनामे की जिल्द में पिन्हा एक मुकम्मल नाविल है। सरवर रिवायती सफ़रनामों का सा लगा जहाँ रफ्त को बूत पर तरजीह दी गई है। आज़ादी बल्तिस्तान के जिंदा व जावेद शोहदा को खराज देकर जड़ी मिट्टी की खुशबू सफ दर सफ फैला दी गई है। यहाँ की रीत रिवायात और रसूम क़ुयूद में ख़वातीन की लतीफ़ व खफीफ तैयारियों का मुशाहिदा इतना मुतवज्जो और मरकूज़ होकर शायद ही कोई कर पाया है। जिस सलीके के साथ बल्तिस्तान के मौसमों समाज मुआश और बूदोबाश को एक लड़ी में जिस महारत से परोया है, यकीनन ऐसी बाहुनर दस्तकारी किसी खातून को ही ज़ेबा है। जहाँ इन अवल रोमांस और अलमिया नगारी और तारीख की शिकस्त और रीत के नर्म गुदाज ज़ेरो बम से हिचकोले दे देकर काफी शऊरी तौर पर जगा है,
وہاں سفر نامہ نگاروں کی روایتی سرکاری وزاداری ٹھاٹ باٹ اور شیخ خرچیوں سے مغرہ دیہات اور دیہی زندگی اور عوام میں ساتھ بیٹھے کیے گئے مشاہدات کی ایسی منظرکشی کرتا ہے کہ ہر لفظ جرجری پڑتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے اور گمان میں گھس کر تحت شعور کے کواڑوں میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ آغاز باتم حقیقت کے زو افشاں الفاظ ایسے منور اور تاباں نظر آتے ہیں کہ جیسے لفظوں کی بارات سیاہ رات میں شپائے جلائے صف در صف بڑھتی جا رہی ہو، گویا سطر در سطر کالی روشنائی کی تحریروں میں ایک لفظ کالا نہیں ملتا۔ روایتی و ثقافتی نغمات، سر و ساز، رشتہ و پیوند، جذبات اور احساسات اور ہتھیاروں اور اوزاروں کو مقامی زبان میں ادا کر کے نہ صرف بیان میں چاشنی پیدا کی ہے بلکہ بلتستان پر لکھی جانے والی اس نادر تحریر میں بلتی زبان و ادب کو بھی جگہ دے کر خوب حق ادا کیا ہے۔ کتاب کی رونمائی میں قدر ستروی کی وجہ سمجھ نہیں آئی، تاہم اس کی کئی متوقع وجوہات میں بلتی ثقافت کی ضعیفی کے متوازی الاثر بڑھتی ہوئی قدر و قیمت، شگر کے خوبرو اور اس وقت کے نوجوان اور اس وقت کے بزرگ سیاستدان ندیم صاحب کی مقتدر و اقتدار کی تاریخ ساز کامرانیوں کا انتظار، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کسی دل فینگ آشفتہ مزاج اور الفت آفرین شخصیت کا سوز نہاں مندمل ہونے کی فرصت بھی ہو سکتی ہے۔ میری خوشبختی ہے کہ اپنی ہم عمر کی منہ دکھائی میں شامل ہوا جو خوبصورت، دل فریب اور داد آفرین ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بتا دینا بخدا میری مراد صرف اور صرف یہ خوبصورت کتاب ہے۔ یہ تھے ادب سے بھرپور اپنی مثال آپ تحریر پڑھنے والے ہمارے قلمکار حاجی باقر سرمکی۔ اگلے مقرر جو مقالہ پیش کریں گے مقالہ نگار ہیں جناب محمد عباس کھرمل صاحب، بسم اللہ۔ آپ ریڈیو کے بہت بڑا کی ترجمانی کر رہا ہے، یعنی آپ کو آوری کی خوشی میں کسی جگہ پر ٹک کر بیٹھنے سے انکار کر رہا ہے، اور ہم نے گھر زینا اور گلی کو اسپن عود و عنبر جلا کے معطر کرنے کی کوشش کی۔ اس خاص ادبی محفل کے صدر نشین محترمہ سلمیٰ امان صاحبہ، ان کے ساتھ تشریف آئی ہوئی مہمانان عزیز محترمہ نیلا محمد بشیر صاحبہ، سیما پیروز صاحبہ، صاحبان علم و ادب، معزز سامعین، السلام علیکم۔ محترمہ سلمیٰ امان کی قدم محنت کے دوبارہ اس سرزمین پر پڑھنے سے یہاں کی ادبی فضا میں ایک بھرپور ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کی لکھی کتاب یہ میرا بلتستان یہاں کے جغرافیائی پس منظر میں اور لوگوں کی افتاد طبع، ذہنی اور جذباتی کیفیت یعنی تہذیب و ثقافت کی مکمل نچوڑ ہے۔ بلتستان کے حوالے سے یہاں کی چھوٹی بڑی سچائیوں کا اظہار اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تو خیر اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے سمجھ نہ سکا کہ ناول یوں بھی لکھا جا سکتا ہے جس کے سارے کردار جانے پہچانے بھی ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہوں، وہی وادیاں، وہی چراگاہیں، وہی ہواؤں کا شور، یہ سب درمیان سے اٹھ کر کرداروں میں ڈلتے ہوئے ابدی زندگی حاصل کرتے ہوئے۔ پچھلے دنوں احسان علی دانش صاحب نے اس کتاب کا ایک نسخہ مجھے عطا کیا کہ اسے پڑھو کچھ لکھو۔ میں نے اپنی کمزوری جسے وہ بخوبی جانتے ہیں دہرا دی۔ موصوف نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے استعداد کے مطابق کوشش کرنا۔ جب کتاب ہاتھ میں آئی تو کچھ صفحے پڑھ ڈالے، تب مجھے محسوس ہوا یہ کتاب مجھے اس دور میں لے گئی ہے جب زندگی کے شب و روز خواب اور خیال کی طرف گزرتے تھے۔ گزرے دنوں کو پھر سے لوٹا رہا ہے اور وقت میرے لیے ٹھہر گیا ہے، یہ اس کتاب کا جادو ہے۔ یہ کتاب مجھ پر بلتستان کی عمومی تاریخ اور تہذیبی زندگی کے بیشتر رازوں کو کھول رہی تھی۔ آج کل جب بھی فرصت ملتی ہے اسے کھولتا ہوں، میں ایک سطر کیوں نہ ہو پڑھتا ہوں،
ये मुझे फिर से तरोताज़ा कर देती है। वो ख्वाबनाक लम्हे फिर से वापस आ जाते हैं। ये पहाड़, ये दरिया, ये अगले मैदान, ये दरख्त, ये खेत अलग अलग से फिर बोलने लग जाते हैं। दिल में जो तरह तरह के एहसास जाग जाते हैं, शायद उसे मैं कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकूँगा। नक्श गुजरे हुए लम्हों के हैं दिल पर क्या क्या, नक्श गुजरे हुए लम्हों के हैं दिल पर क्या क्या, मुड़ के देखूं तो नजर आते हैं मंजर क्या क्या। कहते हैं पहाड़ की चोटियों पर उबलने वाले चश्मों का पानी जिगर और फेफड़ों के जख्मों को ठीक कर सकता है, लेकिन चंद ऊंची उड़ान वाले परिंदे ही वहां तक पहुंच पाते हैं। हम अपने बारे में क्या कहें कि हम अभी तक चुगज़म के दौर से नहीं निकल सके। मशकों और डंडों से बनी हुई किश्ती यानी ज़ख्म और दूध के दरख्तों की जड़ों के छिलके से बनी हुई रस्सियों का पुल बिखरे हुए तूफानों को पार करना है, और हम चुगज़म के रस्सियों को पकड़े सोच रहे हैं, बल्कि उस लड़की की तरह दुआ पुकार रहे हैं, प्यारे अब्बा हो सके तो इस दरिया से कोई लोहे का पुल तामीर करो, अगर मुमकिन नहीं तो कोई कम से कम लकड़ी का ही एक पुल तामीर करो, वरना इस रस्सी पर चलते हुए या बस्ता पानियों में गिरते क्या देर लगेगी। कब तक मायूसी और बेयकीनी की कैफियत में हमें रखेंगे। परदेसी लोग आते हैं और चले जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो एहसास की इन गहराइयों में उतरते हैं। ये मेरा बल्चिस्तान, इस किताब को पढ़ते हुए मैंने एक नया हौसला पाया कि कोई तो है जो इन मसाइल के रूह को समझती है, हमें खुद से अलग नहीं समझती है, दूर कर हमें चाहती है। काश इस तरह की और सलमा अवानी आ जाए। एहसास और शूर की कुव्वतों को यकजा करके यकजहती और एतमाद खुलूस की खुशबुएं बिखेर देती। ये हुनर को खुदा ने मोहतरमा सलमा अवान को अता की है। ये बेकराम मोहब्बत, ये नज़र की गहराई, ये दर्द जो इनके दिल में मौजूद है, इस तरह हकीकत की तस्वीर कशी करती है जो बज़ाहिर आसान और सामने की चीज़ होती है, लेकिन ऐसे ही ख्यालात इंसानों को बुलंद परवाज़ी अता करता है। मोहतरमा सलमा अवान इस शाहीन की मानंद है जिसके परों में जाफशानी की कुव्वत है। वो जब उड़ती हैं तो बुलंद परवाज़ी उनके दिल में कोई खौफ पैदा नहीं करती है। ज़िंदगी में कुछ काम सूद और ज़िना से अलग होकर करने से कहते हैं खुद आगाही में मदद मिलती है। आपने लिखी है कि आओ हम नई नस्ल तैयार करें जो ज़ात के हिसार से निकल कर मजमा में खो जाएँ, इंफरादी सूद से बाला होकर इज्तिमाई ज़िया पर कुर्बान हो जाए। सफ़र बखैर, आपकी अच्छी सेहत और खुशी के लिए दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान। से ज़ाहिद ड्रामे लिखे हैं रेडियो के लिए, और बहुत सारे फीचर लिखे, सफ़रनामा लिखा है, और अदब पर अभी काम कर रहे हैं। तो ये मकाला आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद इस शख्सियत को मैं दावा दे रहा हूँ, उनका ताल्लुक ज़िला गाज़िया से है। इन्होंने भी कई दर्जन किताबें लिखी है, फ़ारसी के तर्जुमे किए हैं। ज़िंदगी भर काम लिखने का ही काम है, बोलते नहीं बोलना सुनता है। मैं दावा दूंगा जनाब गुलाम हसन हसन साहब इस साल वाले को इशारा करें, आप आएँ और अपना मुझे गलत है कि आप लोगों ने अपने आप पर भी जुल्म किया इसलिए मैं आने वाला नहीं हूँ। बहरहाल जिस तरह ने मुझे सहमत दी है उसके लिए मुझे नहीं नकारा दिया। ये जो तकरीब है किसी किताब की रंग के सिलसिले में या तकरीब नहीं के सिलसिले में, वो तो उसी मौका पर होना चाहिए था। लेकिन ये सलमा अवान का कमाल है कि वो अपने काबी को गर्दों से चिगर से कपूल से खरमा से फिर छोड़ से रुंजू
गली गली महल्ले महल्ले उंगली पकड़ कर ले जाती है और फिर जब वो यहाँ कद्दू अस्पताल में एक कमरे में पहुंचती है तो वहाँ से गायब हो जाती है। और गायब भी ऐसा गायब कि 30 साल का अर्सा जिसमें एक पैदा होने वाले बच्चे के सर में तशीदी नजर आती है, 30 साल के अर्सा तक गायब रहती है। और ये तो हमारे एहसान भाई और रजा भाई वगैरह का कमाल है। उन्होंने लाहौर के गली महलों से उनको ढूंढ निकाला, न सिर्फ उनको ढूंढ निकाला बल्कि उनको अपने जैसी लिखारी 3 खवातीन के साथ यहाँ आने पर मजबूर किया। मेरे ये डॉक्टर मुजफ्फर साहब से गुजारिश ये है कि जरा ख्याल रखना, कहीं सलमा आवाम फिर अस्पताल में जाकर फिर किसी कमरे से फिर गायब न हो। सामीन, ये जो किताब है ये मेरा बख्तिस्तान, उसको ये किताब जो है वो तकरीबन 1988 में मेरा हाथ आई, लेकिन मैंने उसको थोड़ा पढ़ने के बाद नहीं पढ़ा। उसके असल में 3 वजह थी। एक वजह तो ये है कि मैं सबसे पढ़ूँ तक मजहब में डूबा हुआ था, तो आप लोगों को मालूम है मजहबी लोग जो वो नावील अफसाने वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो उन्हीं के रविश पर मैंने ये किताब जो है वो थोड़ा पढ़ करके। और दूसरी वजह ये थी कि मैं एक खुशबाज किस्म का आदमी हूँ, खुशी से मैं खुश होता हूँ और उदास चीज़ें जो वो पढ़ते हुए मुझे भड़क नहीं होता। किताब के शुरू में उन्होंने अपने मरहूम किसी जुबैर नामी शोहर का जिक्र किया था, फिर उनके रिश्तेदारों की तरफ से घर से निकालने का जिक्र किया था, फिर वो सुकून की तलाश में सुकून की जन्नत बल्तिसान में आने का जिक्र था। तो इस तरह वो आदमी को शुरू में उदास कर देता है, तो इसलिए ये किताब मैंने नहीं पढ़ी। और उसकी तीसरी वजह ये थी कि उन दिनों मुझे वो किसी नावील अफसाने वगैरह से मुझे दिलचस्पी नहीं थी, तो दिलचस्पी ना होने की वजह से मैंने नहीं पढ़ी। फिर मुझे उसी दौरान ऐसे करने फिर MA करने का मौका मिला, तो इन कोर्सों में ड्रामा अफसाना और नावील वगैरह के बारे में मज़ामीन था, तब मुझे उनकी अहमियत का एहसास हुआ। तो एहसास होने के बाद फिर मैंने सलमा आवाम की किताब पढ़ी। पहले खरीद कर मैंने अलमारी में वो महफूज रखा हुआ था, उसको फिर पढ़ा, तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये किताब जो वो कैसी। उसमें बल्तिस्तान की तारीख, सकाफत, तहजीब वगैरह के बारे में कैसी शानदार अल्फाज में उन्होंने बल्तिस्तान की बात की। ये देख कर भी हूँ वो मैं बहुत ही हैरान हुआ। बार बार पढ़ने के बाद बार मुतासिर, और अब तक मैं इस किताब को बार पढ़ता हूँ, बार इस किताब को पढ़कर मुतासिर होता रहता। उनका कमाल यह है कि उन्होंने अब ये मसलन वो यहाँ कद्दू में पहुँचती है, तो कद्दू में जो जितने तारीखी मकामात हैं, जितने सकाफती मकामात हैं, अपने कारी को वहाँ पर वो उंगली पकड़कर वहाँ पहुँचा देते और उनको पूरी तफसील कहता है। ये नहीं कि थोड़ा बयान करके फिर उसको अधूरा छोड़ दे, ऐसा नहीं, बल्कि पूरी तफसील के साथ वो बताती है। और शिकर पहुँचा तो शिकर की तारीख, तहजीब, सकाफत के बारे में वो बताती है। फपूले पहुँचे तो वहाँ पर, छोट तक पहुँचे तो वहाँ पर, खरमा पहुँचे तो वहाँ पर, तो इस तरह वो हर चीज़ को तफसील के साथ बयान करती है। ऐसी शानदार उसलूब जो है वो आज तक किसी मुसन्निफ के हाथों से नहीं। सलमा आवाम ने ये किताब लिखी, उस वक्त से अब तक दरियाई शिकर, दरियाई सिंध के पुलों से बहुत सा पानी गुजर चुका है। उन्होंने जिस राजा फतेह अली खान का जिक्र किया है, जिस वजीर गुलाम महदी का जिक्र किया है, वो तो कब के फौत हो चुके हैं। और जिस उन्होंने अपनी किताब में जिस नजीम और जिस आजम खान को लाहौर के MA औकारी का स्टूडेंट जाहिर किया है,
अब वो वहाँ से फारिग होकर बाकायदा ये कागजात सियासत में कदम रख चुके हैं। आप उनसे आज ही मिल चुकी होंगी। अब ये दोनों एक दूसरे को जेल करने में लगे पहले जो वो नजीम साहब ने आजम खान को जेल किया, क्यों दूसरी बार आजम खान ने नजीम को जेल किया, फिर तीसरी बार नजीम ने आजम खान को जेल किया। अभी वो चौथी बार है, चौथी बार जो हो वो अभी नजीम जो हो वो नजीम साहब ने पिछले इलेक्शन में आजम खान को जेल किया। और जिन लोगों को वो मसलन वो जेन सिकंदर वगैरह किताब की तहरीर के वक़्त जो उसूर में डीसी वगैरह होता था, अब वो कब से वो रिटायर होकर आकर वो फिर एक मरतबा केटू और सियाचिन की सरजमीन, हिमालय व कराकरूम की वादियों, शेर दरिया के पुरसुकून खित्तों और सयाहों की जन्नत स्कर्दो बल्किस्तान तशरीफ लाई है। अब उनमें घूमने फिरने, मनाज़िर क़ुदरत और हुस्न फितरत के नज़ारों का शौक़ शायद पहले की तरह तूफ़ानी न हो, क्योंकि वो वलवला, वो जोश, वो जज्बात कहाँ, वो ख्वाहिश दिल, लब का वो नगमात कहाँ, गुजरी वो जवानी, ये बुढ़ापा आया, इस मरहले पर पहली सी वो बात कहाँ। लेकिन डॉक्टर सलमा आवान एक आम इंसान नहीं, जिनके बारे में मीर दर्द ने कहा आम लोगों के बारे में, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था। वो तो एक माए नाज अदीबा, पुख्ता कलमकार और मुनफरिद अंदाज तहरीर की मालिक सफरनामा निगार हैं। ख्वाजा हैदर अली आतश ने यह शेर उनके लिए कहा, सफ़र है शर मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ारहा शजर सायदार राह में हैं। मोहतरमा सलमा आवान एक आला तहरीरकार और मुनफरिद अदीबा हैं। अदब पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, इसलिए अगरचे जिस्मानी तौर पर तो वो शायद पीरी के मरहले में दाखिल हो चुकी होंगी और जिस्मानी थकावट भी महसूस कर रही होंगी, लेकिन उनका कलम यकीनन ताज़ादम पुरअज़्म जमालियात के ज़ौक़ से मालामाल और जवां होगा। आज का स्कर्दो बल्किस्तान 30 साल कबल के बल्किस्तान से उन्हें यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। इन 30 सालों में बल्किस्तान एक जश्न में पत्थर के दौर से कंप्यूटर के ज़माने में दाखिल हो चुका है। यहाँ बड़ी समाजी, सियासी, माशरती, तालीमी, अदबी, तामीरी और सकाफती तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। जदीद बल्किस्तान के खद खाल देख कर लाजिमन मोहतरमा सलमा आवान की मीज़ान नज़र एक तकाबुली जायज़ा भी ले रही होगी। हो सकता है बल्किस्तान के ताज़ातर मुतालाए और मुशाहदे के बाद वह एक ताज़ा सफ़रनामा तख्लीक फरमाएँ, जैसे कि हफ़ीज़ साहब ने फरमाइश की। मोहतरमा डॉक्टर सलमा आवान के अब तक 7 नावलें, 5 अफ़सानवी मजमूए और 6 सफ़रनामे छप चुके हैं। 5 किताबें ज़ेर तबाह हैं। आज मोहतरमा सलमा आवान के जिस सफ़रनामे की तकरीब रोनुमाई हो रही है उसका नाम है ये मेरा बल्किस्तान। इस किताब के दूसरे एडिशन के सरवर जो आपके सामने मौजूद है, इस किताब के दूसरे एडिशन के सरवरक पर नुमायां तौर पर एक मासूम व सादा खातून की खूबसूरत तस्वीर है, जिसके सर पर बल्कि टोपी यहाँ के पुराने वाक़ों के तहजीबी, सकाफती और तारीखी ज़ेवरात से लदी फंदी है। उसके गले में चांदी के खूबसूरत हल्कों में लद्दाखी गहरे सब्ज़ रंग के बड़े बड़े फेरोज़ों वाला हल्का हलगज़न है। जिस्म बल्कि रिवायती लिबास से मलबूस दुपट्टा नुमा चादर टोपी के ऊपर। इस खातून के दाएं बाएं और आगे मुख्तलिफ खानकाहों की तस्वीर इल्म इरफान का पता दे रही हैं। पस मंज़र में सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त की शाखें और पत्ते लहरा रहे हैं। किताब के कुल सफ़हात की तादाद 244 है। किताब अगरचे मुख्तलिफ फसूल और हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन कहीं भी कोई उन्वान कायम नहीं किया गया है। किताब की इबारतें निहायत शिगुफ्ता, सलीस और दिलनशी हैं।
اس سفر نامے میں تاریخی واقعات بھی ہیں، تہذیب و ثقافت اور رسوم و روایات کی جھلکیاں بھی ہیں اور سیاحتی نقطۂ نظر سے بیش بہا معلومات بھی۔ یہ سفر نامہ بلتستان کا تعارف نامہ بھی ہے، جغرافیائی خط و خال کا رہنما بھی۔ اس سفر نامے میں ناول کی طرح تفصیلات اور جزئیات نگاری، افسانے کی طرح دل فریب انداز تحریر، رمز و ایما، منظر نگاری اور قلمی سحر انگیزیاں اٹکھیلیاں کھیل رہی ہیں۔ باتوں باتوں میں اخلاقیات کا درس، مشرقی تہذیب کی مثالیں، مرد عورت کے رویوں کے موازنے، صبر و تحمل کے نتائج اور اشارات و کنایات کی دلکشیاں مچل رہی ہیں۔ اس سفر نامے میں سفر کی ساری کہانی کی تفصیلات افسانوی رنگ میں متجسسانہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ سلمیٰ اعوان کو ہر دم بدلتے حالات کی نقشہ کشی کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے سفر نامے کو لکھتے وقت جہاں آنکھوں دیکھا حال بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہیں، وہاں نادر تشبیہات، برمحل استعارات اور تخلیقی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سفری مناظر پیش کرنے میں انہیں کمال مہارت حاصل ہے۔ بطور مثال ذرا اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ جہاز نے اونچی اڑان لے لی تھی، قداور درخت بوٹے بن گئے تھے، مارگلک کی پہاڑیاں مٹی کی ڈھیریاں لگ رہی تھیں، اسلام آباد کے گھر گڑیوں کے گھروندے میں منتقل ہوئے، کھیت جیومیٹری کے ڈیزائن لگنے لگے، ایبٹ آباد کی سرسبز پہاڑیاں اور ان کے دامنوں میں بنے ٹین کی چھتوں والے گھر سورج کے اولین روشنی میں یوں چمکتے تھے جیسے کسی نے سبزے پر جستی چادر کے چھوٹے چھوٹے ڈبے یہاں وہاں لڑکا دیے ہیں۔ کہیں کہیں یہ بچوں کے کھلونے گاڑیاں دکھائی دیتی۔ محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ اعوان شاعرانہ تخیل، افسانوی ذہن، سیاحانہ ذوق و شوق، مورخانہ سوچ، محققانہ انداز نظر اور مصورانہ گہری نگاہیں رکھتی ہے۔ بہار و خزاں کے مناظر، سرد موسموں کی کیفیات، صبح و شام و شب و روز کے پرکیف ہنگاموں، جغرافیائی تغیرات اور ہر دم بدلتے حالات کی نقشہ کشی ایک ماہر مصور کی طرح بڑے عمدہ اور لطیف انداز میں کرتی ہے۔ راقم کی ایک نظم جس کا عنوان مصور کی نظر ہے، یہ نظم احمد فراز کی صدارت میں اسلام آباد میں ایک کل پاکستان مشاعرہ ہوا تھا، وہاں سنائی تھی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نظم محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ اعوان کے فن و شخصیت پر صادق آتی ہے۔ اس نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ مصور کی نظر گاہے اتر کر آسمان سے دفعتاً اونچے پہاڑی سلسلوں پر بیٹھ جاتی ہے، وہاں اس کو نظر آتے ہیں کیٹو اور سیاچن، راکا پوشی، نانگا پربت کے شمالی حسن و رانائی، جہاں 12 مہینے برف کی شہزادیاں بادل کی چادر اوڑھ کر، سردی سے ناتا جوڑ کر، گرمی سے رشتہ توڑ کر، پستی کی فطرت چھوڑ کر اپنی بلندی کی خوشی میں مسکراتی ہے۔ مصور کی نظر میں بیٹھتا ہے گاہ سایہ اور کبھی جلوہ فگن ہوتا ہے، رنگ و روشنی کا حسن دلکش، اور کبھی نہروں کی چشموں کی روانی، اور کبھی تو شیر دریا کی جوانی، گاہے گاہے آبشاروں کی کہانی، اور کبھی تو ندیوں کی نامخانی، ریگزاروں سبززاروں کی ادائے بے زبانی سخت ہوتی ہے۔ آخر میں بلتستان کے اہل قلم کی طرف سے محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ اعوان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے سفر نامہ یہ میرا بلتستان کی آج تقریر رونمائی ہو رہی ہے، ساتھ ہی میں تمام اہالیان بلتستان کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میرا بلتستان کے عنوان سے نہایت یادگار، لاجواب اور بے مثال سفر نامہ تحریر فرما کر جہاں ادب کے ذخیرے میں خوبصورت اضافہ فرمایا، وہاں بلتستان کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، یہاں کی سیاحت اور مناظر قدرت سے دنیا جہان کو آگاہ بھی کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، قدم قدم پر خوشیاں عطا فرمائے اور ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلمیٰ ان کا نام ہے، نسبت میں وہ اعوان ہے۔ سلمیٰ ان کا نام ہے،
نسبت میں وہ آوان ہیں، مل گیا ان کو قلم، اس پر بہت شادان ہے۔ اے سفر نامہ حسین، یہ میرا بلتستان ہے، اس کے سب قصے کہانی کتب کا سامان۔ یہ کہ استاد شاعر پروفیسر عصمت علی کمال الہامی صاحب آخر میں انہوں نے 2-4 اشعار سنائے۔ میں کسی شاعر کو دعوت دینا چاہوں گا، انہوں نے آپ کے حوالے سے جو کچھ ان کے خیالات ہیں منظور کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2 کتابوں کے مصنف ہے، میں بطور شاعر کے توجہ چاہتا ہوں، اور بہت زیرگو شاعر ہے، ہمارے دوست ہیں، میری مراد ہے جناب فرمان علی خیال صاحب۔ دوسری نظم سے کچھ تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سلام سلمہ، سلام اقلیم علم و فن کی عظیم مرتبہ، سلام لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی، سلام نیلم، سلام سیما، دیار مہر و وفا میں آمد پہ دل سے خوش آمدید سب کو، دیار امن و اما میں آنے کا سب شکریہ، شگفتہ لفظوں، حسین خیالوں، جمیل سوچوں کے تاج محلوں کی شاہزادی، عظیم سلمہ، تیرے قلم کی تجلیوں سے جبین کرتاس جو خشاں ہے، تیرے قلم ہی کی روشنائی سے بلتیوں کا حسین پیکر دمک رہا ہے، میرا مقدر چمک رہا ہے، تیرے قلم میں وہ روشنی ہے کہ جس سے مہر و وفا کی کرنیں جھلک رہی ہیں، محبتیں بھی چھلک رہی ہیں، تیرے سخن میں وہ دلکشی ہے، وہ نغمگی ہے کہ پڑھنے والا بھی فرط حیرت سے جھوم اٹھے، شگفتہ لفظوں کو چوم اٹھے، تیرے بیان میں وہ سادگی ہے، وہ تازگی، وہ شگفتگی ہے کہ سننے والا بھی تیرے لفظوں کی ساحرانہ حصار میں سانس لینا بھی بھول جائے، حسین لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی ہماری سلمہ، سلام کرتی ہے تجھ کو جھک کر میری فضائیں، خنک ہوائیں، حسین شام جمیل صبحیں، کراکرم اور ہمالیہ کی بلندیاں بھی سلام کرتی ہیں تجھ کو جھک کر، تمہارے قدموں کو چومتی ہے دیار علم و ادب کی مٹی، سکون و امن و اما کی نگری، تمہارے رستے میں اپنی پلکیں بچھائے سالوں سے منتظر تھیں، حسین بہاریں، حسین نظارے، عظیم سلمہ، عظیم سلمہ، حسین لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی، تمہاری آمد پہ دل کے غنچے بکھر اٹھے ہیں، میرے وطن میں، میرے چمن میں، گلاب چہروں پہ تازگی کا خمار دیکھو، چمن میں فصل بہار دیکھو، یہ لذت انتظار دیکھو، حسین لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی ہماری عفت مآب سلمہ، قسم ہے لوح و قلم کی تو ایسی محسنہ ہے کہ جس نے ان تربتوں میں محصور اور مقبول زندگی کو، ہر ایک غم کو، ہر ایک خوشی کو، شگفتہ لفظوں، مہکتے جملوں کی تازہ مالا میں یوں پرو کر بیان کیا ہے، زمانے والوں میں بدریوں کا حسین چہرہ بیان کیا ہے، قسم ہے لوح و قلم کی تو ایسی محسنہ ہے کہ جس نے ان پر بتوں میں محصور اور مجبور زندگی کو، ہر ایک غم کو، ہر ایک خوشی کو، شگفتہ لفظوں، مہکتے جملوں کی تازہ مالا میں یوں پرو کر بیان کیا ہے، زمانے والوں پہ برتیوں کا حسین چہرہ بیان کیا ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت، ہماری تاریخ اور ادب کے سنہرے سربستہ گوشوں کو اپنے دستے ہنر سے کرتاس کی جبین پر سجا دیے ہیں، ہمارے ماضی کے آئینے پر جمی ہوئی گرد اپنی آنچل سے آ کے تم نے ہٹا دیے ہیں، تمہارے دستے کرم نے بانے جہاں کی صورت غریبی ایسی نفیس کی ہے کہ ساری دنیا نظر اٹھا کر ہماری جانب بھی دیکھتی ہے، اے محسنہ، اے حسین لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی، میں کس طرح زبان سے حرف سپاس تیرے حضور رکھوں، اے محسنہ، اے حسین لفظوں کے تاج محلوں کی شاہزادی، میں کس طرح کی صبح سے حرف سپاس تیرے حضور رکھوں، میرے قلم میں، میرے سخن میں، میری زبان میں، میرے بیان میں تمہارے شایان شان کوئی ثنا نہیں ہے، میرے قلم میں، میرے سخن میں، میری زبان میں، میرے بیان میں تمہارے شایان شان کوئی ثنا نہیں ہے، میرے مہربان محسنہ تم خفا نہ ہونا، میری لغت، میرا علم و ادراک کچھ نہیں ہے، میں اپنی کوتاہ آگہی کا بھی معترف ہوں، تمہارے آگے
नजूम व महरो कमर भी रख दूँ तो ये भी कम है। अजीम सलमा, ये झरने झीले उबलते चश्मे, तवान साहब सीनियर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर एंड फाइनेंस, आप हम वेलकम करते हैं। अजीम सलमा, ये झरने झीले उबलते चश्मे, ये आबरूपारे तेरे लिए हैं, ये कहकशां ये धनक ये सूरत ये महापारे तेरे लिए हैं, ये फूल शबनम हसीन कलियां गुलाब सारे तेरे लिए हैं, परंदे जुगनू ये तितलियां ये हसीन नज़ारे तेरे लिए हैं, जो आसमाने अधर में रोशन है ये सितारे तेरे लिए हैं, मेरे तखय्युल में जितने खिलते हैं इस्तिआरे तेरे लिए हैं। हसीन लफ्ज़ों के ताज महलों की शाहज़ादी या सलमा आवान, देखिए तो ये फैज़ सुखन का एहसान है कि दानिश की रोशनी से शऊर इल्म अमल के जलवे ख्याल की दिल नशीन वादी में चार जानिब बिखर रही है। अपने दोस्तों का तज़किरा इसमें है कि हसीन लफ्ज़ों के ताज महलों की शाहज़ादी या सलमा आवान, देखिए तो ये तेरे फैज़े सुखन का एहसान है कि दानिश की रोशनी से शऊर और इल्म अमल के जलवे ख्याल की दिल नशीन वादी में चार जानिब बिखर रही हैं। ये तेरी जुर्अत का है करिश्मा कि जुल्मतों में सहर की सूरत हमारी तहरीर के सितारे भी जलमगर हैं। ये तेरे अल्फाज का है जादू कि लोग अपनी रजा से गायब बने फिरे हैं, गायब बने फिरे हैं। हसीन लफ्ज़ों के ताज महलों की शाहज़ादी, जो तेरे हमराह माहो अख्तर अजीम नीलम अजीम सीमा दियार शहरों सुखन में उतरे हैं, उनके राहों में अपनी पलकें बिछाए हर्फ व सुखन के नायाब चांदनी भी हमारी जो है सुखन से छिन छिन के फूटती है। तो कह रही है कि आज अर्ज़ शिमाल के नीलगुं फलक से खुदाए बरतर ने अपनी कुदरत के शाहकारों हसीन सितारों अजीम इल्मी उफ़ुक़ के पुरनूर महापारों जहान इदराक व आगही के बुलंद बाला हसी मीनारों को बलती युल में उतार कर दिलनशीन खत्ते को और भी दिलनशीन किया है। अजीम इफ़्फ़त महाब सलमा, हसीन लफ्ज़ों के ताज महलों की शाहज़ादी, मेरे तख़य्युल में खिलते कलियों की इस लड़ी को कबूल करना, नस्ल में मंजूम शायरी को कबूल करना। सलमा, हसीन लफ्ज़ों के ताज महलों की शाहज़ादी, मेरे तख़य्युल में खिलते कलियों की इस लड़ी को कबूल करना, नस्ल में मंजूम शायरी को कबूल करना। अजीम लोगो ए बल्तियुल के अजीम लोगो, ये वो मेहरबान मुसन्निफ़ा है कि जिसने अपने कलम से अंचल की सरजमी को तुम्हारे इस अर्ज़ दिल नशीं को जहां में मुमताज़ कर दिया है। ये वो मेहरबान मुसन्निफ़ा है कि जिसकी तहरीर में कहीं भी खुद अपने नामो नमूद का तज़किरा नहीं है। ये वो मेहरबान मुसन्निफ़ा है कि जिसकी तहरीर में कहीं भी खुद अपने नामो नमूद का तज़किरा नहीं है। न खुद नुमाई न खुद सताइश न खुद फरेबी, अजीब है दिल फरेब हस्ती। कसम है रब्बे सुखन की यारो ये सलमा आवान, कलम कबीले में सबसे दिलचस्प जिंदा लफ्ज़ों का तर्जुमा है। कसम है रब्बे सुखन की यारो ये सलमा आवान, कलम कबीले में सबसे दिलचस्प जिंदा लफ्ज़ों की तर्जुमा है। हमारी तहजीब और सकाफ़त के सरबस्तर राजों की राजदां है। किताब उनकी जमाल तहरीर का निशान है। कलम तले जिसकी मेरी जन्नत पड़ी हुई है ये ऐसी माँ है। कलम तले जिसकी मेरी जन्नत पड़ी हुई है ये ऐसी माँ है। मैं क्यों न इनके कलम को चूमूं, मैं क्यों न इनके कदम को चूमूं। फरमान ख्याल मंजूम नसर, मेरा ख्याल है कि सलमा अमान साहब खुद हैरान परेशान है कि इतनी लंबी नज़म किस तरह से तख्लीक की है। और कल हमारा मुशायरा था बज़्म फ़न का, तो हमारी मेहमान साहबा वहाँ मौजूद थी। जब लड़कों का मुशायरा इन्होंने देखा तो कहा कि मैं दिल्ली जाकर मुशायरा देख कर आई हूँ, मैं दुनिया भर में जाती रहती हूँ, मुशायरा मैंने देखा है, मगर जिस स्टैंडर्ड की शायरी इस कद्दू में शोरा ने की है उस स्टैंडर्ड की शायरी मैंने दिल्ली में नहीं देखी। फरमाया था जिस शख्सियत को मैं दावत दे रहा हूँ
बल्तिस्तान में सफ़रनामा निगारी के हवाले से इनका नंबर पहले नंबर पर आता है। पहला सफ़रनामा लिखा, उसके बाद दूसरा लिखा, उसके बाद तीसरा लिखा। पहला लिखने के बाद मैंने लिखा, मैं दूसरे नंबर पे मैं खुद हूँ, मैं 2 नंबर ही नहीं हूँ, दूसरे नंबर पे। तो डॉक्टर साहब पहले सफ़रनामे का नाम है ग्योसाई से कंबोडिया तक, अब नायाब है, मार्केट में नहीं। दूसरे सफ़रनामे का नाम 8 समंदर पार है। तीसरे सफ़रनामे का नाम प्रीवी के 3 सिक्के हैं। और इसके अलावा एक दरमियान एक और किताब आई थी मेडिकल के हवाले से। कई किताबें तरतीब हैं और इस वक्त स्कर्दू GHQ हॉस्पिटल के बहुत माहिर डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम साहब। जनाब अकबर ताबान साहब, हमारी मेहमान सलमा आवान और उनके कोलीग्स को, डॉक्टर उस्मा को, तमाम सामीन और हाजरीन को जो जिन्होंने अदब से इल्म अदब से बल्तिस्तान से मोहब्बत का सबूत दिया, यहाँ आए उनको खुशामदीद कहता हूँ। सलमा आवान के बारे में क्या कहूँ, ये 30 साल का तशरीफ़ लाई है। शायद वफ़ा का कुछ असर के पूल में कहा जाता है कि आवानों का ताल्लुक़ हज़रत अब्बास रमज़ान से, चनांचे ये वफ़ा का कुछ न कुछ असर है कि जो 30 साल बाद बल्तिस्तान को फिर याद कराई है। इनके सफ़रनामों को पढ़ के अंदाज़ा हुआ बल्तिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के 3 किस्म के सफ़ीर हैं। पहले वो सफ़ीर हैं, वो हमारे वो तलबा सफ़ीर हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान और बैरून मुल्क तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। अपने अच्छे चाल चलन, शराफत और अच्छे रवैयों और मेहनत की वजह से वो बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली बल्तिस्तान के सफ़ीर बनते हैं। इन सलमा आवान की मुलाकात की लाहौर में बल्तिस्तान के एक सफ़ीर से उनका नाम ज़रूर लूँगा, वो रूहुल्लाह साहब का इन्होंने जिक्र किया है। उनसे मुतासिर हो कि इन्होंने सोचा कभी अगर मैंने जाना हो तो बल्तिस्तान ज़रूर जाऊँ। दूसरे हमारे सफ़ीर हैं वो मुलाजमीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो यहाँ बड़ा अरसा क़याम करके चले जाते हैं। यहाँ से बज़ाहिर हम उनको भूल जाते हैं, वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब बल्तिस्तान का कोई जिक्र आता है, कोई मसला आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो इसको रिकॉल करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। उनका बल्तिस्तान के बारे में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे। और तीसरे सफ़ीर वो लोग हैं, वो सयाह और कलमकार और मुसाफिर और सफ़रनामा निगार और पोपेमा हैं जो यहाँ आते हैं, तकलीफ़ें भी उठाते हैं, सफ़र की मुश्किलात भी बर्दाश्त करते हैं, ज़िंदगी को ख़तरों में डाल कर आते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, ग्लेशियर्स को फतह करते हैं और बहुत नामसाइद हालात में भी रहते हैं। और वो बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को वो ज़िंदा रखते हैं अपनी तहरीरों में। आज बल्तिस्तान मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीरों में ज़िंदा है। वो तहरीरें जो बहुत बरसों से, सदियों पहले अंग्रेज़ों ने लिखी, डोगरों ने लिखी, मुसलमानों ने लिखी, सयाहों ने लिखी। क्योंकि इल्म अदब का कोई मजहब नहीं है, इल्म अदब का, सयाहत का कोई जोग्राफिया नहीं है। जिस तरह हमें कहा जाता है कि डॉक्टरी की कोई बाउंड्री नहीं है, डॉक्टरों की कोई सरहद नहीं होती, इसी तरह इल्म अदब की कोई सरहद नहीं है। चनांचे उन्होंने दिल की गहराइयों से यहाँ के बारे में लिखा और वो अजीम इल्मी व अदबी विरसा है जो हमारी मीरास है। ये वो हमारे गुमनाम सफ़ीर है जिन्होंने सदियों से गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन रखा। उनमें से एक सलमा आवान, मैं इनको इन्होंने 30 साल पहले के इर्तिकाई बराहिल देखे। उस वक्त के नौजवान इमरान नदीम आज तक एक बुजुर्ग की शक्ल में मौजूद हैं। यूसुफ हुसैन आबादी साहब बनफ से नफीस मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद नहीं हैं। उस वक्त की शाह जहाँ, बल्कि उन्होंने इनको नूर जहाँ कहा, वो भी आज इधर मौजूद है। इनको बहुत खुशी हुई होगी कि 30 साल के बाद मेरी किताब के किरदार किस जहत जो मौजूद है वो इसी तरह खुश, इनको देख के खुश हुए, इनकी पज़ीराई कर रहे हैं, इनकी तकरीब में शरीक है अपनी दिल की गहराइयों और मोहब्बतों के साथ। चनांचे ये मोहब्बतें मिटती नहीं हैं, 30 साल का अर्सा गुजर जाए ये तवाना रहती है। कोई बात नहीं, हालात की घात उनको लम्हे पर के लिए ओझल ज़रूर कर देती है, लेकिन ये मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती। और ये इल्म अदब से जुड़ी मोहब्बत तो सदियों पर मुहीत होती है। फिर हमारा पाकिस्तान बस से रिश्ता है। हम पाकिस्तान में दरियाए सिंध की पहली वादी हैं, तहजीबें हमसे यहाँ से फूटी हैं। सिंध वादी सिंध की जो तहजीब देवबंद में और कराची में है वो दरिया के किनारे पर है। पाकिस्तान में दाखिल होने के बल्तिस्तान दरियाए सिंध की पहली तहजीब है। यहाँ का कल्चर जिस तरह यूसुफ हुसैन आबादी ने महफूज किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये ऐसी काविश किसी ने करने की सोचा जरूरत भी कोई नहीं करेगा। जिस तरह इन्होंने बल्तिस्तान को
इस कदीम वादी सिंध की तहजीब को पत्थर के दौर से कंप्यूटर के दौर तक महफूज किया है, वो काबिल तहसीन है। ये आने वाले राइटर और सयाह जब इसे देखेंगे तो एक नहीं बेशुमार सैकड़ों किताबें वजूद में आई, और कोई ताज्जुब नहीं कि केटू और शंग्रीला के नाम पे आने वाले सयाह यूसुफ हुसैन आबादी के म्यूजियम के नाम पे यहाँ आने लगे। इसी तरह इन्होंने 30 साल पहले जिस बल्तिस्तान को देखा उसमें शऊर और अदब और आगही और आज की उसमें बड़ा फर्क है। मैं हसदू साहब की तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि आप एक और किताब लिखें कि ये नया बल्तिस्तान। वाह जी, मैंने इनको टाइटल भी दे दिया कि ये नया बल्तिस्तान के अनवान से ज़रूर लिखिएगा, और अपनी कुलीग से, आपके हमरा जो राइटर्स हैं, इनसे भी कहें कि इस पर आर्टिकल लिखें कि 30 साल पहले के बल्तिस्तान में और आज में कैसा फर्क है। आज का बल्तिस्तान मैं समझता हूँ बिल्कुल उसी तरह मेट्रोपॉलिटन्स की है जिस तरह आपका लाहौर रावलपिंडी है। इसमें उनकी खूबियाँ बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बुराइयाँ बहुत हैं। अमन शंग्रीला का एक रूहानी माना लिया जाता है कि ऐसी जगह जहाँ पे अमन अमान हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, खूबसूरती हो, सुकून हो, तो वो शंग्रीला हमारा एक रेस्ट होटल तक महदूद नहीं है। पूरा बल्तिस्तान एक शंग्रीला है हर लिहाज से, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है। मैं समझता हूँ कि इस पहलू को भी आप ज़रूर उजागर करेंगे। और मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, आपने कहानी में एक आपकी कहानी का एक फर्जी किरदार एक डॉक्टर इब्राहिम भी है, तो एक हकीकी किरदार आपके सामने खड़ा है। ज़रूर जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जामे और मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाया। जिस शख्सियत को मैं दावत दे रहा हूँ, आप बल्तिस्तान के सीनियर अदीब में आपका शुमार है, सीनियर लोगों में, और स्टेज प्ले राइटर और कहानी नवीस रहे हैं। आपकी तसानीफ में बल्कि लोकगीत, आसार व अजदाद इमाम ख़ुमैनी और ख़त कराकरम व वसाइल का ख़जाना इस वक्त लाहौर में छप रही है। छठे दलाई लामा के रोमानवी गीतों का उर्दू तर्जुमा, दास्तान केसर के 12 अबवाब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा अभी शाये होने वाली है, होने जा रहा है। इमाम हुसैन राह नजात ज़ेर तकमील है। आप गिलगित बल्तिस्तान के वाहिद अदीब और महक़क़ीक़ हैं जिनको दुनिया के 25 यूनिवर्सिटियों ने अपने कॉन्फ्रेंसिस और सेमिनारों में मकाला पेश करने की दावत दी। अब तक आपने इसी सिलसिले में ज़ूरिख यूनिवर्सिटी और बर्न यूनिवर्सिटी, स्विट्ज़रलैंड, बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी, तेहरान यूनिवर्सिटी, चीन के बीजिंग और सिचुआन के सिम्पोजियम और टोक्यो शीमा जापान में यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम बहाली गैर मुजस्सम समूहों पर मुनाकिद आलमी वर्कशॉप में अपने मकाले पेश किए हैं। इसी वर्कशॉप में यूनेस्को की तरफ से आपको ऑनरेबल मेंशन अवार्ड दिया गया। आपका लिखा हुआ स्टेज ड्रामा सिकने इस्लामाबाद में 4 मरतबा के और सिड्नी मेला और अलहमरा लाहौर में भी स्टेज किया जा चुका है। आपने अपनी ज़ाती बुक्स स्टॉक से 250 किताबें म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरीज कर्दू को अता किए हैं। आप में चंद बड़ी कमजोरियां भी हैं, सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग आपसे खफा रहते हैं, मगर फिलहाल हम सब आपसे राज़ी हैं। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास का और मेरे अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। इनके चेहरे की बात हो जाए, इनके चेहरे की बात हो जाए, आज जिक्र गुलाब ये मेरा बल्तिस्तान अपना यर और खुलूस से लबरेज ये अल्फाज उस खातून के हैं जो न बल्तिस्तान में पैदा हुई न यहाँ रहती, बस एक दफ़ा यहाँ सैर करने आई थी, यहीं की होकर रह गई। न बल्तिस्तान ने इन्हें बुला दिया और न इन्होंने बल्तिस्तान को फरामोश किया। बल्तिस्तान ने जहाँ उन्हें अपने अंदर जज्ब कर लिया, उन्होंने बल्तिस्तान को अपने रूप में उतार दिया। और इस खातून का रिश्ता इतना मजबूत और गहरा है जितना केटू का बल्तिस्तान से। यूँ कहिए कि ये बल्तिस्तान की है और बल्तिस्तान इनकी है। चंद साल पहले की बात है, गिलगित में एक मुशायरा हुआ था जिसमें शिरकत के लिए इस्लामाबाद से चंद सीनियर शायर भी आए।
यहाँ के बुलंद पहाड़ों को देखकर शायद एक शायर का दिल घबराया। उन्होंने महफिल में ये रिमार्क्स दिए, अजय साहब यहाँ क्या रखा है? खुशकी तो नहीं, हर तरफ पर पहाड़ी पहाड़। हमारे सरमाए कौम प्रोफेसर हशमत अली कमाल हामी साहब, जो खुद एक बाकमाल शायर हैं, इस महफिल में मौजूद थे। उन्होंने जब अपना कलाम पेश किया तो उसमें उस साहब की बेज़ौकी और तंज का यूं जवाब दिया, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। इसी तरह जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भारतीय फौज ने बल्तिस्तान के सबसे बड़े और दिफाई लिहाज से अहम तरीन ग्लेशियर गुलाबों की सरजमीन सियाचिन पर कब्जा किया, तो उन्होंने अर्ज़ पाकिस्तान को मुहैया करने वाले इस ग्लेशियर को इतना गैर अहम जाना और ये रिमार्क्स दिए। अब सबको याद होगा, वहाँ तो घास भी नहीं उगती। जी जी जी, ये जो के रिमार्क्स, ये जख्म में जो लगा हुआ है, वहाँ तो घास भी नहीं उगती। जी हाँ, वहाँ घास तो नहीं उगती, लेकिन गुलाब जरूर उगते थे, जिससे इसका नाम सियाचिन यानी कि गुलाबों वाला पड़ गया। काश इन दोनों ने ऐसी बातें करने से पहले सलमा आवान साहिबा का ये मेरा बल्तिस्तान पड़ा होता तो उनके नाम, तो उनके ज़ौक़ हुस्न को जिला मिलती और खुश्क और संगलाख पहाड़ों की सरजमीन और दुनिया के 5 एटमी ममालिक के दरमियान वाक़ दुनिया का ये अहम तरीन निराला खित्ता जिंदा व ताबिंदा जन्नत लगता। ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र है लेकिन, ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन, जो शे की हकीकत को न जाने। नज़र क्या बल्तिस्तान में सिर्फ सलमा आवान साहिबा नहीं आई, बल्कि और भी विश्व नामी ग्रामी कलमकार अदीब और सैलानी यहाँ आते रहे। इनमें से चंद के साथ हमारी मुलाकात और यहाँ के मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लाखों मर्द और ख़वातीन की दुआ है कि रब करीम और रहीम सलमा आवान साहिबा को अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। आमीन। इसके साथ इजाज़त चाहूँ। में पाकिस्तान की किसी शख्सियत को तारीख दान कहते हैं, मैं उनको तारीख दान नहीं कहता, मैं तारीख साज कहता हूँ। यूसुफ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बाबू रज़ा साहब, नाशाद साहब आपस में गठ जोड़ कर ज़िंदगी को चलाते हैं। मैंने इनको बहुत पहले तीनों के लिए मैंने नाम दिया था कि आपके पास 3 ज़माने हैं और तीनों ज़माने एक साथ चलते हैं तो कामयाबी मिलती है। गोया बाबू रज़ा साहब टोटल माजी हैं, उनके पास जब बात करें डोगरों से पहले की बात करते हैं, तो आगे की बात नहीं करते हैं कि डोगरा से पहले ये था वो था, माजी के अलावा उनके पास बात नहीं है। नाशाद साहब से बात, हाँ अभी चलते हैं, हाँ अभी बात काम हो के दोगे, नहीं तो कल उसका कोई काम नहीं होता है। और यूसुफ साहब टोटली मुस्तकबिल है और माजी से मुस्तकबिल की तरफ बहुत दूर देख रहे होते हैं और मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल के हवाले से जो काम किए हैं वो आने वाले वक्त बताया जाएगा कि यूसुफ साहब ने बल्तिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना काम किया है। पहला प्राइवेट पब्लिक स्कूल आपने खोला और फिर एक म्यूजियम बनाया। उस म्यूजियम को देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि आखिर ये एक आदमी ने अकेला कैसे काम किया है। और तारीख पर किताब लिखी, कुरान मजीद का बल्ती में तर्जुमा किया, बड़े काम किए हैं पाकिस्तान के बड़े मुस्लिम। मैं दावत दे रहा हूँ आज के की इस तकरीर की मुनासबत से अपना इज़हार ख्याल तशरीह लाएँ पेश करने के लिए। जनाब यूसुफ सनावत साहब।
بسم اللہ محترمہ سلمہ صاحبہ، بیگم صاحبہ، سلمہ صاحبہ اور جناب یوسف صاحب، حاضرین محفل، اتنے اچھے تبصروں کے بعد آپ نے میرے پاس کچھ رہا ہے نہیں، صرف میرے اور ان کی جو ہے عقیدت کے رشتے کے میں تذکرہ سمجھتا ہوں۔ یہ میں صنعت بھول چکا، شاید 1985 نہیں 1985 کا معاملہ ہوگا، شاید مجھے لاہور سے خط مل گیا، اس میں ایک اس کا نام سلمہ آوان تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جی یوسف صاحب زندگی میں پہلی رکھتی ہوئی سے میں بلتستان آئی اور آسن میں واپس پہنچی، پھر اس کے یہاں سے ہمارے علم عادت کے حوالے سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ان سے میری پہلی ملاقات 19 دسمبر 1991 میں لاہور میں ہوئی، اس کے بعد پھر آج تک ایک عقیدت کا رشتہ ہمارے میں رہا، اور یہ کتاب شائع ہونے کے بعد نہیں، شائع ہونے سے پہلے میرے خیال میں واحد آدمی تھا جس کے شائع ہونے سے پہلے پڑھا۔ آپ میرے سے میرے خیال میں اتنا اچھا تبصرہ، اتنا اچھا تجزیہ ہمارے سارے عالم نے کیا، میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد اس پہ میرے خیال کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں، اس معاشرے میں ہر طبقہ اس معاشرے کی خدمت کرتا ہے، مختلف طریقوں سے کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ خاص انداز سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ ایک ان میں ایک مصنفین کا طبقہ بھی شامل ہے۔ مصنف جو ہیں وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو آئینہ دکھانے والے ہوتے ہیں، یہی مصنفین ہیں جو قلم کے ذریعے سے معاشرے کو ان کی خوبیوں سے جو ہے واقف کراتا ہے، ان کی خامیوں کا جو ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے، اور ان کی سوچوں کو اگر کہیں پہ کمزوریاں ہیں تو اسے مثبت راہوں پہ ڈال دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ہے اس حوالے سے اس معاشرے کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔ میں آپ کا جو ہے اس بلکہ قوم کی طرف سے، بلتستان کی طرف سے، اگرچہ اس وقت آپ غیر نہیں ہیں پھر بھی میں اظہار تشکر کرتا ہوں آپ کا۔ بالکل آپ کی خدمات جو ہیں یہاں پہ یاد رکھی جائیں گی، میرا خیال ہے تا آسمان و زمین ہو تب تک سلمہ آوان کا نام یہاں سے بھی مل نہیں سکتا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب جو ہیں مل کے ان کو سننا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یوسف صاحب۔ خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں محترمہ کلثوم فرمان صاحبہ، چیئرمین بزم مہم شعبہ خواتین یہاں تشریف فرما ہے، 2 جملے عطا کیجیے گا۔ کلثوم فرمان صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس کہنے کو تو کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن میں پاکستان کی خواتین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کا ایک تعلق رہا ہے پاکستان سے، لیکن کبھی آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ باقی آپ کی شان میں جتنے قصیدے جن کا آپ سے رابطہ تھا اور آپ کو جانتے تھے، انہوں نے ہمارے اظہار کا اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں نے ابھی آپ کی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت لوگوں نے مختصراً بتایا ہے تو اس سے اندازہ لگایا کہ جا کر ادب تہذیب ثقافت اور یہ چیزوں میں اگر یہاں کی خواتین کے اوپر بھی آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت ساری خواتین ایسی ملیں گی جن کا اس بلتستان کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے اور انہوں نے بھی بہت حصہ ڈالا ہے اپنا۔ میں امید کرتی ہوں جب آپ اپنی نئی کتاب ایک نیا بلتستان لکھیں گی تو اس میں ان تمام خواتین کے بھی کردار کو اجاگر کریں گی۔
आप हमारी मेहमान भी हैं, बहुत मुद्दत बाद आप नजर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक तकनीकी गलती की माजरत चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं आई और मेहमान आए तो मैं अकेली खातून थी जो इस हॉल में थी, जिसके बायस मुझे स्टेज पर बैठना पड़ा, लेकिन मेरी हैसियत मेज़बान थी। आज के फंक्शन के हवाले से सलमा से मेरा वादा था कि मुमकिन है कि मैं पहुँच पाऊँ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं शिरकत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। दो हवालों से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। एक तो बज़्म इल्म फ़न ने बहुत बड़ा काम किया है। एक किताब जो 30 साल पहले छपी है उसका दोबारा से तारुफ करवाना, दोबारा से नई नस्ल को उससे इस तरीके से रोशनास करवाना कि उसका मुसन्निफ भी बनफ़से है, जिसकी तरफ अभी कुलसूम ने भी अपने बात में तवज्जो दिलाई है। बल्तिस्तान में अगरचे इल्म अदब के लिहाज से बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अदब को भी सिन्फ़े खानों में बांट रखा है। ख़वातीन को बल्तिस्तान की इल्मी और अदबी मजालिस में ज़्यादातर वो मकाम हासिल नहीं है। हम इसको बाकायदा तौर पर बदकिस्मती से हजरात का एक मोनोपली वाला पेशा या सकते हैं कि काम समझते हैं। आज के फंक्शन के हवाले से मेरी दरख्वास्त होगी कि इसी काम को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी अपने दिलों में कुशादा दिली पैदा करें, क्योंकि अदब को मज़हब में, उम्र में या सिर्फ में नहीं बांट सकते। एक लिखारी है, उसके कलम की ताकत है, उसकी तहकीक की ताकत है, उसकी नज़्म की ताकत है, उसको उससे मावरा देखना चाहिए। बस मैं इल्म फ़न इस सिलसिले में आपके तमाम अरकान को मुबारक हो, और सलमा आपा आपको बहुत मुबारक हो कि आप इसका हिस्सा बनी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तकरीब से आइंदा आने वाली ख़वातीन इस की बज़्म का हिस्सा बनेंगी, और आज जो कुर्सियाँ आपको खाली नज़र आ रही हैं आइंदा वो ख़वातीन की मौजूदगी से आपको भरी हुई नज़र आएंगी। एक नया बल्तिस्तान में हम ख़वातीन की निसाई इज़हार जो है उसकी एक झलक ज़रूर देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि मुझे वक्त की कमी का अंदाज़ा है और फंक्शन पहले ही तवील हो चुका है, लेकिन सलमा आपा के सफ़रनामे के हवाले से मुझे थोड़ी सी बात करनी है। अगर हम सफ़रनामे के हवाले से बात करें तो हम जो अव्वलीन सफ़रनामा देखते हैं उसकी कामयाबी की वजह मुसन्निफ ये बताता है कि ये सफ़र का हाल नहीं है, ये उन शहरों का बयान है जो मेरे दिल से गुजरे हैं। सलमा अवान का सफ़रनामा ये मेरा बल्तिस्तान में हमें वही झलक दिखाता है जो हम उर्दू के अव्वलीन सफ़रनामा पढ़ते हैं। बल्तिस्तान उन शहरों में है, उन शहरों में से है जो सलमा अवान के दिल से होकर गुजरा है। और इस सफ़रनामे को देखने के बाद आप अगर सलमा अवान के दूसरे सफ़रनामों को भी पढ़ें तो आपके सामने, आपके ज़हन और दिल में ये फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरीके से एक सफ़र का आंखों देखा हाल बयान किया जा सकता है और किस तरीके से किसी इलाके की रवायात, अक़दार और मोहब्बतों का हाल बयान किया जाता है। बल्तिस्तान की बदकिस्मती है कि इसको मसाइल की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि बल्तिस्तान की एक और अलामती खूबसूरती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पहाड़ों की सरजमीन है, ये दरियाओं की सरजमीन है जो अपने अंदर गंजीने छुपाए हुए हैं। दरियाओं के अंदर आप देखिए गहराई तक बहुत से बातें हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहे हैं। इसी तरह पहाड़ों के अंदर लाजवाब मोती छुपे होते हैं जो बहुत कोशिश चाहते हैं, जिनको ढूंढना पड़ता है, जिनके लिए तकदो करनी पड़ती है। जो अहले दिल होते हैं, जो बसीरत रखते हैं, वो इनको ढूंढ पाते हैं। सलमा अवान को बहुत मुबारक हो कि उनके अंदर ये बसीरत भी है, उनके अंदर ये मोहब्बत भी है, और इसी वजह से उन्होंने बल्तिस्तान के अंदर छुपे हुए ये सारे खजीने जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं। आज की महफिल में तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद, नीलम अहमद बशीर को, सीमा फिरोज़ को और सलमा को ज़ाहिर है, और मिनिस्टर साहब को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ आए और इल्म अदब की सरपरस्ती का
इजहार किया। मेरी ख्वाहिश होगी और मैं आप सबको सबके सामने दावत देती हूँ कि आप गर्ल्स कॉलेज भी आइए और बल्तिस्तान का एक दूसरा चेहरा जहाँ पर आपको निसाइयत की तरक्की और आपको तालीम की तरक्की का एक और अंदाज़ आपके सामने आएगा, वो भी ज़रूर देखिए। मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगी चूँकि ये प्रोग्राम के डेकोरम में नहीं था, बस ऐसे ही कुछ इजहार ख्याल और कुछ शायरी की बात हुई और मदर्स डे की बात हुई तो कुछ अशार पेश करूँगी। लेकिन उसके साथ ये कि ज़ाहिर है माँ के लिए कोई एक दिन मुख्तस नहीं किया जा सकता, ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि वालिदैन के लिए। कुछ अशार आपकी खिदमत में मदर्स डे के हवाले से पेश करना चाहूँगी। और सलमा आपा ज़ाहिर है कि एक मदरली फीचर है हमारे लिए, हमेशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रही हैं। कुछ अशार जो मैं अपने वालिदैन की याद में मैंने लिखे थे, पेश करूँगी। तुम्हारे बाद हमारे लिए हंसी न रही, तुम्हारे बाद हमारे लिए हंसी न रही, अजाब रह गए बाकी कहीं खुशी न रही। वो प्यारा साथ हमारी तो सारी दुनिया थी, वो प्यारा साथ हमारी तो सारी दुनिया थी, उम्मीद की कोई डाली भी अब हरी न रही। उड़ाए अपनी छड़ी से जो मेरे खदशों को, उड़ाए अपनी छड़ी से जो मेरे खदशों को, तुम्हारी ज़ात की वो मेहरबां परी न रही। बिना तुम्हारे मैं वो शय हूँ जो बिला वजह रखी हुई हो, वे अपनी जगह धरी न रही। और शेर है कि फिर उसके बाद जहाँ जिंदगी से खाली हुआ, फिर उसके बाद जहाँ जिंदगी से खाली हुआ, दिलो नजर में कहीं भी वो रोशनी न रही। अजब हुआ कि बसीरत ने साथ छोड़ दिया, अजब हुआ कि बसीरत ने साथ छोड़ दिया। बहुत से लफ्ज़ हैं बाकी वो शायरी न रही। वो ख्वाब था कि दुआएं मुझे मुयस्सर थी, वो ख्वाब था कि दुआएं मुझे मुयस्सर थी, जो खोली आँख तो झोली मेरी भरी न रही। जहाँ वो सोए हैं ज़ेरे ज़मीन मट्टी में, जहाँ वो सोए हैं ज़ेरे ज़मीन मट्टी में, मैं पूरे कद से वहाँ आज तक खड़ी न रही। आज हम सब माओं के लिए दुआ करते हैं और ख़ुसूसन सलमा वालों के लिए ख़ुसूसी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सलमा अवान साहबा से कल मैंने पूछा, आपकी किताब पढ़ी और उसमें इतनी बातें थी, जैसे आप लोगों ने अभी तबसरा किया। आप कितने अरसे के लिए यहाँ 2 साल के लिए रही थी, आप 6 महीने के लिए रही थी, क्योंकि उसमें सारे सीज़नों का तज़किरा है, सारे इलाकों का तज़किरा है, सारी तहज़ीब का, सकाफ़त का। कहा मैं सिर्फ 13 दिन के लिए रही थी। मोहब्बत तो दिखा देते हैं, लेकिन वाकई इतने दिल से आपको धन्यवाद करें कि ये अनरियल है। ऐसे मैंने बड़ी हैरान हुई हूँ। तो लास्ट 30 साल बाद पहले मैं इसके साथ आई थी, हमने किताब लिख रहे थे, हम लोग जो कुछ लिख चुके। बहरहाल सलमा बहुत कामयाब सफरनामा निकाल रहे हैं हमारे मुल्क की। और मुस्तफर साहब के बाद बात क्या, मैं तो उनके साथ ही कहती हूँ और एक दफ़ा उनसे डांट भी खा चुकी हूँ, जब उन्होंने मैंने उनको कहा कि ये ज़माना मुस्तफर तारा है, मुझे डांट भी दिया। तो हम बड़े खुश हैं कि हमारी दोस्त सलमा वाकई बहुत काबिल और बहुत लायक और बहुत बारीक भी से लिखती हैं। और उन्होंने एक ऐसे इलाके के बारे में लिखा, इसको टच किया जो अनएक्सप्लोर्ड था। जो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दुनिया में बहुत कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन आप ऐसे चीज़ को छुएं जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने छुआ ना हो, तो उसकी एक अलग ही है। तो ये वाकई ये कितना ऐसा है कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, अब भी नहीं करना चाहिए। इसकी इतनी बड़ी तारीफ है, इसकी तहजीब है, इसका हुस्न है, इसकी इफरादियत है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। और दुनिया में अल्लाह ने बहुत कुछ बनाया जो खूबसूरत है, सिर्फ यही खूबसूरत है। लेकिन हम तो 2 दिन से इसके शहर में गिरफ्तार हैं, जो पहाड़ हैं लगता है कि वो हमें खींच रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमारे लिपट रहे हैं हमसे। तो हम तो बैठ के देखते रहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, कि मैंने तो दुनिया की और चीज़ें देखी हैं, पाकिस्तान इतना खूबसूरत देखा नहीं था जो आप नजर है। एक 2 बातें मैं कहूँगी, मेरी प्यारी 1-2 बहनों ने बात की और मैंने कल एक जगह मुशायरा हुआ था, वहाँ पे भी बात की कि आपका जो है ये सुबह तो नहीं कहूँगी जो इलाका है, इस लिहाज से बड़ा ख़ास है कि आप लोग तारीख को बहुत अहमियत देते हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई कम ही ऐसी जगह होगी जहाँ
हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं और आप लोगों की इससे रोशन करने का अंदाजा होता है कि आप जो मर रहे हैं क्रेडिट जाता है, आप लोग ख़वातीन को नहीं दबा रहे और उन्हें पढ़ने दे रहे हैं, ये मेरे नज़दीक बहुत ही काबिल तहसीन बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था कि जैसे मुशायरा हुआ था उसमें सब मर्द नजर आ रहे थे, तो क्या ख़वातीन के जज्बाती ख़यालात में क्या वो शायरी नहीं करती हैं? वो करती हैं, वो घर बैठी हैं, आप लोग उनको बाहर निकालें, पूछें कि तुम्हारे क्या ख्यालात हैं, तुम तो बताओ, उनसे पूछें, क्योंकि वो टोटली उतनी ही क्रिएटिव है जितने आप सब लोग, वो कम नहीं है। बेशक उनका दिमाग तोड़ के देख लें, आप सब करके ज़्यादा ही होगा बाहर हमसे। तो ये है कि अपनी ख़वातीन को आप मौका दे रहे हैं, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप देखें पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 58% औरत है, उसको नहीं दबा सकते, क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी का एक तरह बड़ा तूफान है। क्या करेंगे आप उसको दबा कर? अच्छा निकलने दें, उसको फ्लरिश करने दें, डेवलप करने दें, वो तो पहुँच जाती है इस चोटी पर जो आपके सामने औरत है, और यहाँ की औरत इससे कम तो नहीं है ना। तो ये जो भी आप तकनीकी काम कर रहे हैं, लेट देम कम आउट, उनको इंकरेज करें, तुम भी आओ, तुम भी सिर्फ रोटी पर जाएगी रात की, कोई बात नहीं, तुम भी जाएगी, तो उसके जहन को भी देखिए वो क्या सोच रही है, क्या सोचती है, क्या चाहती है वो। ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे भी एक तरह से खटक रहा था कि मैं आई हेट टू से दिस कि मर्दों की बर्तरी या हुक्मरानी ऐसी बातें मैं करना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर कोई बात हो गई, ज़्यादा आदमी है, वो बच्चियों को तो पता नहीं कौन उठा लाया इसलिए चलो कोई तमाशा हो गया, तो वो कहाँ है जो आपके बराबर की है, जिनके जहन आप जैसे वो भी लाते हैं ना। तो ये बात है, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये बात की, तो मुझे हौसला हुआ कहने का। मैंने कहा बुरा ना मना देंगे, शहरी औरतें ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। तो अल्लाह यहाँ पे आप लोगों को तौफीक दे कि इस इलाके को मज़ीद संभालें, डेवलप करें और इसके लिए डटे रहें आप। सुबह भी हमारी किसी से बात हो रही थी, वो थोड़े से थे ना उम्मीद कि हमें ये हकूक़ हासिल है, वो हकूक़ हासिल है। ये खित्ता इतना ज़बरदस्त है, एक पहाड़ खोदे तो हीरे निकलते हैं, आपको किसी की क्या परवाह है? आप लोग अपने पहाड़ खोदे, जिंदगी आपके आगे हीरे बिछाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत मोहब्बत दी। थैंक यू। फिर एहसान दानिश की, जिन्होंने हमें बुलाया और इतना खूबसूरत हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हमें देखने को मिला, और इतने प्यारे और इतने अच्छे और पुरखलूस लोग मिले। वाकई आप लोग बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात लगी है वो ये कि आप लोग सादा बहुत हैं। हम राजों के घर भी गए हैं, आम लोगों के घर भी गए हैं, सबका एक जैसा पहनावा, एक जैसा खाना और एक जैसा फर्श पे बैठना। लगता है कि आप जो हैं वो धरती के बेटे हैं, धरती आपसे आप धरती से जुड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ये धरती आपको कभी मायूस नहीं करेगी। और इतने खजाने इस धरती में अल्लाह ताला ने दिए कि अगर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इस तरफ तवज्जो दें और हम जाके इसके बारे में लिखेंगे कि वो इसको साइंटिफिक तरीके से यहाँ से चीज़ें निकालने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि चंद सालों में पाकिस्तान सारा सोने का बन सकता है। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें और तरक्की करें और ज़्यादा आप हमारे से भी ऊंचे अल्लाह ताला आपको करे और हम बार बार आए आपके पास। और अगर ट्रेन चल जाए तो मेरा ख्याल है कि आधा लाहौर तो यहाँ होगा आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जहाज़ अफोर्ड नहीं करते और वैसे बाय रोड जो है वो बहुत थक जाता है। तो हम कोशिश सारे मिलके करते हैं कि ट्रेन चल पड़े पिंडी से, तो फिर हम सब आपके पास आया करेंगे। आपकी मोहब्बतें लेके हम जा रहे हैं और अपनी मोहब्बतें आपको दे के जा रहे हैं, जो हम कभी आप नहीं भुलाएंगे और आप भी हमारी मोहब्बतें नहीं भूलिएगा। जब जिसका कभी आना हो हमारे पास तो हमें कांटेक्ट करें, हमारे मेहमान बने, ताकि हम आपको बता सकें कि हम भी अच्छे मेहमान नवाज हैं और अच्छी मोहब्बत करने वाले। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जाओ दुनिया में हमारी बनाई दुनिया की सैर करो और अल्लाह के रहमत की निशानियों पर नजर डालो कि कैसे मुद्दे ज़मीन
محترمہ سلمہ آوان صاحبہ اور سٹیج پہ تشریف کر کے مہمان حافظ و آپ کے ساتھ تشریف لائی ہیں. آڈینس میں بڑی تعداد کثیر تعداد بلکہ آپ نے کثیر ہی کہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا انٹلیکچوئل لوگوں کا جمع ہے کافیر ہے ہمارے سامنے کو جس کی سمجھ سکتا اچھی تعداد ہے. تعداد ہونا چاہیے کہ بلکہ صاحب رائے ہے صاحب علم ہے صاحب فن ہے شعراء ادیب حضرات ہے. ایک شاعر ایک ادیب اس قوم کا قائم کر سکتے ہیں اور ایک جاہل قوم کا وجہ بگاڑ سکتی ہے. لہٰذا پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں. محترمہ سلمہ آوان صاحبہ وہ آپ سے ہماری شناسائی سے بیشتر نہیں لیکن احسان دانش اور رضا بخائل اور فرمان الخیال نے غائبانہ آپ کا تعارف ہم سے کیا اور اب کے بعد اگر آپ کے یہاں پر حالات اور آپ کی ٹائم جانتے جتنا ایسا رہے گا ہمارا مہمان ہوگا اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً ہمیں بجا و فخر حاصل ہے کہ سرزمین بلتستان اہل علم کی سرزمین ہے اہل فن کی سرزمین ہے اہل علم کی سرزمین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ تمام چیزیں کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہاں کے لوگ اچھے نہ ہو تو سارا جہنم کی بات تمام ہے. یہاں آپ کو یہ سن کے بڑا حیرت انگیز حیرت آپ کی حیرت اضافہ ہوا کہ یہاں آج سے کم و بیش 10-15 سال 20 سال پہلے کوئی چوری چکاری نام کوئی چیز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا واقعہ مجھے خود یاد ہے ڈی موٹر میں ایکسپریشن ٹیم آئی ان کے اس زمانے کے 75 لاکھ ڈالر ایک ویٹر کو ملا اور اس نے چھپا کے رکھا اور جب چلے گئے ایکسپریشن ٹیم آگے اپواجی کو نہیں بھائی واپس آیا کیونکہ میں نے کہا بیگ میں پیسے نہیں تھے. اس ویٹر جو ذریعے حیثیت کیا ہے جو 2-4 ہزار روپے کا ملازم ہے اس نے چھپا رکھا ہوٹل مینیجر کو نہیں بتایا. جب وہ آ گیا تو اس نے حوالے کر دیا. یہاں پر جب پورے ملک میں سنیما ہال اور فلمی ماحول تھا آپ دیکھ لیجیے یہاں پر ایک سنگل سنیما ہال کا موجود نہیں تھا. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہاں کے شعراء جن میں بامحب باذاکر باشجاع باجوہر ان کے جیسے شعراء ہیں جو کم و بیش علامہ اقبال علیہ رحمت کے پائے گئے نمبر سے کم بھی کسی بھی چیز پہ اگر آپ توازنائی کرتے ہیں تو جو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ جو پیش کرتا ہے اس پہ فکرت ہنسنا اس پہ شاعری کرنا اس پہ لکھنا اتنا بڑا فن نہیں ہے. فن اس چیز کا ہے ایک آدمی جس نے بجلی نہ دیکھا ہو ایک آدمی جس نے پہاڑ نہ دیکھے ہو ایک آدمی جس نے ریل ٹرین یا جہاز نہ دیکھا اس پہ اگر توازنائی کرے اس کی بہت اس کی کمال اس کی استعداد کی انتہا ہے. جس طرح ایک بہت میں آپ کی مثال دوں گا کہ وہ عباس علیہ رحمت آج سے کم و بیش 150 سال پہلے یہاں بجلی نہیں تھی بلکہ میں کہوں گا شاید پاکستان میں برصغیر میں شاید وہ فرماتے ہیں کہ سنگی اور گوگانی یو سپر بفری سادوسی تارکو سے میگی شیشی برگ اس نے آنکھوں کو برف تشبیح دیا دل کو سفرشن تشبیح دیا اور جتنے بھی وید ہمارے جسم میں موجود لگے ہیں اس کو وائر سے تشبیح دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجیے کہ ان تاروں کو جمع کر کے دماغ اور دل کے ذریعے آنکھوں میں روشنی عطا کی. محترمہ میں آپ کی عرض کروں کہ یہ سرزمین جو امن کا گہوارہ ہے یہاں عورتوں کی اتنی عزت ہے مردوں کی عزت ہے. ہم عورتوں کو کب تک نہیں سمجھتے ہیں. یہ کل علاقوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر جہاد میں کچھ روشنی نہیں ہے. ہم اپنے ماؤں بہنوں کو شکیل بتا رہے ہیں اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بہنوں کو وہ مقام دیتے جس کو شہر میں تشریف دیا.
خدا کی قدرت حور کے گود میں لنگور خدا کی گود میں لنگور خدا کی قدرت میں احسان دادی سے کمال ادب سے میں معذرت خواہ ہوں. یہ برداشتہ وسیع ہے کہ کوئی ایسی باتیں مل نہیں چاہیے جو آپ کو موقع پر بحال ہو. میں اس پہ معذرت خواہ. میں اس سے معلوم میری بہترائی آپ کی ایسے آپ کو یقیناً سچ میں لنگور نہیں بنایا. آپ چاہیں اور ہماری بھابھی ہے نہیں. جوش بارونت اور پرمرس جلسے سے بلکہ جلوس کہتے ہیں. ہمارے جلوس میں غلط ہے. جلوس بیٹھے ہوئے جلوس کہتے ہیں, جلسہ نہیں کہتے ہیں. اردو میں ایک تصحیح یہ بھی کروں کہ جلوس وہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں اس کو جلوس کہا جاتا ہے. ہمارے لوگ مطلب واک کرنے کو یا اس کو جلوس کی جلوس یہ نہیں ہے کہ میں ایک احسان صاحب آپ دل برداشت کر رہا ہوں. آپ اپنا کام سخت مت سے کریں اور اس کی وہ جان اس سے پاس سے وفا ہوگی. نور نکلے گا. گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر. گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر. اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا. اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا. اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف. ہمیں پتا تھا ہمارا قصور نکلے گا. اب تقریب اختتام کی طرف گامزن. مہمان صدر محفل کو بلانے سے پہلے کسی کے اشعار مجھے یاد آتے ہیں کہ دل نے کیا تھا یاد ابھی آپ آ گئے. دل نے کیا تھا یاد ابھی آپ آ گئے. قسمت ہماری جاگ اٹھی آپ آ گئے. اور خوشبو لکھی ہوئی تھی ہمارے نصیب میں. رخصت اگر بہار ہوئی آپ آ گئے. رخصت اگر بہار ہوئی آپ آ گئے. اور ہم سے ہمارے خواب بڑے خوش نصیب ہیں. ہم سے ہمارے خواب بڑے خوش نصیب ہیں. جب بھی ذرا سی آنکھ لگی جمع ہو گئے. یہاں اچھے مغز والے جمع ہو گئے. سارے سرکردہ اور خواتین بھی تشریف لائی. اور کئی دنوں سے آپ کو نہیں معلوم, یہ سبھی لوگ اس خیال میں ہیں کہ آپ کو یہاں کتنی عزت مل رہی ہے, آپ کہاں جا رہی ہے, کہاں سے واپس آ رہی ہے, کیا کھا رہی ہے, یہ سبھی لوگ جانتے ہیں. اور اس وقت میں آپ ہی کو دعوت دے رہا ہوں, تشریف لاتے ہیں. آج کی ہماری صدر محفل محترمہ سلمہ عوام بیٹھی ہے, بلتستان کی دانشور بیٹھی ہے. میں آپ شاید میرے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جس میں کیفیت میں ہوں. اور یہ کیفیت میرا خیال ہے لکھنے والے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. سچی بات ہے کہ جسے کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک نوسٹلجیائی کیفیت میں کہ میں 30 سال پہلے جب آئی تھی اور اب 30 سال کے بعد آئی ہوں تو ایک ایک منظر کو میں کیسے دیکھ رہی ہوں, ان شخصیات کو میں کیسے دیکھ رہی ہوں, یہاں کیسے آئی. آنا چاہتی تھی, نہیں آ سکی, دانا پانی نہیں تھا. پچھلے سال مجھے ڈاکٹر سلطہ صدف کا فون آیا کہ گردوں سے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور تم نے شام کو ضرور آنا ہے. شام کو میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ گروپ ہے, تو ان میں تو یہ گروپ ان کو پتہ چلا کہ سلمہ عوام ہے یہ, تو یہ سب لوگ میرے پاس آ گئے. تو ان کی آنکھوں میں وہ محبت اور وہ چمک اور وہ احترام تھا کہ میں خود جذبات سے بھی. احسان دانش نے کہا آپ سلمہ عوام ہیں, آپ بلتستان آ جائیے. آپ کا بلتستان جو 30 سال پہلے کا تھا وہ بہت ڈیولپ ہو گیا ہے, بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. آپ بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ آ جائیے.
और वाकई में मैं घर आई तो मैं बहुत उदास थी। मैंने कहा मुझे जाना चाहिए। मैं गुलाम नसीर मेहदी का जब मुझे पता चला कि वो फौत हो गई हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जितने दिन भी यहाँ रही स्कर्दू में बल्तिस्तान में तो मेरी कई शामें उनके साथ गुजरी थी। तो हमारे बल्तिस्तान के पाकिस्तान के बहुत बड़े दानिश्वर इनकी जो यूसुफ हुसैन आबादी की किताब मुझे उन्होंने क्योंकि मैं इनसे नहीं मिल सकी थी तो मैंने कहा कि वाकई में मुझे जाना चाहिए और फिर ये एक फैसला था तो मैं आज यहाँ आ गई। बल्तिस्तान पे लिखने का ख्याल कैसे आया? यहाँ बहुत से लोगों ने ये सवाल किया या हुआ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मज़मून में। पहली बात तो थोड़ा सा और भी यहाँ बेरब्त अगर हो जाऊँ तो माइंड नहीं करना, क्योंकि ये है कि मैं जज्बात के मेरे ऊपर जज्बात हैं और जब जज्बात में होता है तो बंदे को वो थोड़ा सा उसका सीक्वेंस का ख्याल नहीं रहता है। क्योंकि तो मेरे मामू जो थे उनकी सबसे पहले पोस्टिंग जो थी वो गिलगित में हुई और दूसरी पोस्टिंग स्कर्दू में। तो मैं इनके नामों से बहुत बचपन से आशिक थी। मैं यहाँ की खुबानियों, यहाँ के तूतों की नमकख्वार थी, यानी बहुत बचपन में ये जायके चखी। जब 69-70 में मैं ढाका यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ लिखने के लिए ही गई थी। एडमिशन लिया, वापस आकर किताब लिखी तो सोचा कि अब मैंने क्या करना है आगे। तो एक उन्हीं दिनों में, ये 74 की बात है, उन्हीं दिनों में एक मैं तकरीब में गई। ये एक बड़ी ऊंचे 5 स्टार होटल में एक तकरीब थी। वहाँ बड़ी मॉडर्न खवातीन आई हुई थी, बड़ी एलीट क्लास की महफिल थी। तो वहाँ स्कर्दू का कोई जिक्र हुआ तो एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून ने कहा, स्कर्दू, ओ माय गॉड, वेयर इज इट? तो मैंने साथ बैठी हुई खातून से, वो भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, उससे कहा, मैंने कहा कि व्हाट अ स्टूपिड वुमन शी इज, शी डजंट नो वेयर स्कर्दू इज, क्योंकि मैं जानती थी स्कर्दू कहाँ है। तो उसने कहा आगे से बड़ी मासूमियत से कहती है, मुझे तो खुद नहीं पता। तो दैट वाज द मतलब वो पॉइंट था जिससे मुझे क्लिक किया कि मुझे अब जाना है, मुझे अपने मुल्क की इन दुश्वार गुजार, क्योंकि मैं जानती थी मेरे मामू जाते थे तो मुझे पता था कि इस जाने आने में कितनी दुश्वारियां हैं और ये इलाका कितना दुश्वार गुजार है। तो लेकिन मैंने इरादा किया, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। फिर ऐसा हुआ कि 86 में मैंने पहला सफ़र पिंडी से शुरू किया और मैं चिलास की बाबूसर टॉप से होती हुई बैक किया। मैं गिलगित आई, गिलगित से मुजा गई, वहाँ से मैंने खोस जाकर मैंने वापसी की। 1 महीने के बाद मैं स्कर्दू आई और स्कर्दू में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बेहद प्यारे, बेहद मोहब्बत करने वाले। उन्होंने मुझे बिल्कुल बाहों में समेटा, एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी जगह से चौथी। ये सब उन लोगों की विसासत से मैंने ये चीज़ें देखी। तो जिस वक्त मैंने प्लान, मेरा ख्याल था कि मैं इसे मर्ज कर दूंगी, एक शुमाली इलाका जाकर एक मुश्तरका सफ़रनामा बन जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ का मैंने देखा, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सकाफत, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी सादगी, मौसीकी, शायरी, मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी। चौकारी, आर्किटेक्चर, महल, इमाम खानकाहें, इमाम बाड़े, मैंने बहुत खूबसूरती यहाँ देखी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो इलाके पर जुल्म होगा, ये तो नहीं, मैंने ऐसा कहा। अलग से लिखूंगी और मैं तो इसे एक अलग से, अब दिन तो मैं 13 दिन रही और उन 13 दिनों में जो मेरा फ्रेमवर्क था मैंने उसके मुताबिक ही इंफॉर्मेशंस ली।
ज़माना 86 का था, एडवांसमेंट इतनी नहीं थी, रास्ते इतने दुश्वार गुजार थे कि मुझे याद है कि जब मैं वापस आई खपलू से तो एक गाड़ी को बुक किया, वो गाड़ी मेरा ख्याल है कि मैं उतर रही थी तो वो गाड़ी लेट हो गई, छोड़ के चली गई। तो फिर एक आर्मी का ट्रक था, उसका हैंडल पकड़कर मैं खपलू से स्कर्दू आई। तो ये ज़माना था और उसका हैंडल और नीचे से दरियाई शोर की ठंडी था, बर्फीली लहरें। तो कपड़े की मेरा ख्याल है उस वक्त इतने मोटे नहीं पहने थे कि इतनी समझ नहीं थी। तो जब शाम को गुलाम वजीर बात से आगे निकल रही है, गुलाम वजीर मेहदी साहब से शाम को मिलने आई तो मुझे कहती है कि तुम खपलू से आ रही हो और बड़ी फ्रेश लग रही हो। तो मैंने कहा आप नहीं जानती मेहदी साहब, आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ज़रा भी थकावट महसूस नहीं हुई कि मैंने खड़े होकर सारा सफ़र किया है उसकी रॉड को पकड़कर, इसलिए कि मैं समझती हूँ मैंने एक टारगेट अचीव किया। और मैं तो फिर ये था कि मैं वापस, जाहिर है कि अब जब मैं उसको लिखना चाहती थी तो सर्दियों में यहाँ किस अंदाज में लोग रहते हैं, उसके बाद काश्त का मौसम आता है तो फिर क्या रवैये होते हैं, अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सफ़रनामे में नहीं करूंगी, मैं इसको नॉवेल की टेक्निक दूंगी ताकि नॉवेल का कैनवस, आप राइटर्स जो हैं वो जानते हैं कि नॉवेल का कैनवस बहुत बड़ा होता है, उसमें आप चीज़ों को इमेजिन लाकर आप रियलिज्म टेक्निक देकर उसको फैला लेते हैं और आप उसमें सभी कुछ उसमें लिख सकते हैं। वहाँ आपके लिए स्कोप बड़ा है, मैदान बड़ा है, कैनवस बड़ा है। तो मैंने अब जब लिखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं अटक गई थी, कहीं कोई चीज़, अब जाहिर है कल्चर को पूरी नुमाइंदगी देनी थी और वहाँ पर यूसुफ हुसैन आबादी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन मानिए कि मेरे लिए, मेरे दिल में इनके लिए और अब्बास कासमी साहब के बलते लोकगीत जो इन्होंने किए, इन दोनों किताबों ने मेरी जितनी रहनुमाई की, मैं इनके लिए बेहद तहे दिल से इनकी मशहूर हूँ। तो फिर ये हुआ कि मैंने मेरे चचा उन दिनों एयरफोर्स में थे, मैंने कहा आप बेस के बलती लोगों को ढूंढिए। और मैं खुद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने वहाँ से कहा कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में गई, डॉक्टर करीम थे वहाँ पर जो वहाँ छोरबाट के थे, मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मेरी हेल्प करें। और फिर ये होता था कि वहाँ के बलते लोग मेरे घर आते थे या मैं उनके घर जाती थी। पेश आया। और इसकी एक बड़ी मजे, मेरा ये प्यारा सा हीरो नदीम ये बैठा हुआ है, तो जब वो शादी का सीन था तो ये इसको मैंने बुलाया, आई होप सो कि ये से याद होगा। मैंने कहा नदीम मुझे तो तुम्हारी शादी में जाना है, आप मुझे ले चलो, घर ले चलो और शादी की सारी रस्में दिखाओ। शादी तो मैं जिस दिन स्कर्दो आई थी मैंने एक शादी तो देखी थी उस दिन, लेकिन मैं वो सारे रंग तो नहीं देख सकी इतने शॉर्ट टाइम में जो रंग होते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ी सी यूसुफ हुसैन आबादी साहब की किताब ने दी, कुछ बलती लोगों ने मदद की और मैंने ये पुल सिरात पार किया। जिस वक्त किताब लिखी गई, किताब छपी, तो पहला खत तारीफ का जो मिला वो यूसुफ हुसैन आबादी की तरफ से था, जिन्होंने लिखा आपने बल्तिस्तान की तारीख में खुद को पहली नॉवेल निगार की हैसियत से मनवाया। मेरे लिए बहुत बहुत कीमती थे। दूसरी मेरी तारीफ का खत अब्बास कासमी की तरफ से आया कि आपने बहुत कमाल का सफरनामा, कमाल की किताब लिखी है, हम आपके बहुत मशहूर हैं। अब ये हुआ कि कुछ ये
नवाई वक्त में छपनी शुरू की, सिलसिलावार उन्होंने इसको छापना शुरू किया। तो एक दिन मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, तो ऑपरेटर ने कहा कि आपसे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बात करना चाहती हैं। तो मैं थोड़ी सी हैरान हुई, क्योंकि मैंने देखा मेरा कोई अजीज़ फैसलाबाद में था नहीं इस पोस्ट पर। थोड़ी देर के बाद जनाब GM सिकंदर साहब फोन पर थे, तो वो उन्होंने कहा कि मैं GM सिकंदर बोल रहा हूँ और मेरा ताल्लुक शिमर से है, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इलाके को किस खूबसूरती के साथ पूरे पाकिस्तान में पोर्ट्रेट किया है। मैंने आगे से कहा कि सिकंदर साहब, आप का वो बल्तिस्तान आपका ही नहीं है, वो मेरा भी है। जितना आपका है उतना ही मेरा है, क्योंकि मैंने उसको मोहब्बतों से लिखा है। आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि मैंने 1 साल में उसको मुकम्मल किया था, और मैं आप लोगों के साथ वो पूरा साल में आप लोगों के साथ दिन रात रही थी। मैंने GM सिकंदर साहब को नहीं देखा था उस वक्त तक, तो मेरा एक सफरनामा मिस्र मेरा ख्वाब था, वो छपा। तो उसकी तकरीब का इख्तिताम इजिप्शियन एम्बेसी के अंदर किया। तो उन्होंने मुझे लिखा कि आप 50 मेहमानों की लिस्ट हमें भेज दें, ताकि हम उन्हें एम्बेसी की तरफ से इनवाइट करें। तो मैंने सबसे पहले उस लिस्ट में जो नाम लिखा वो GM सिकंदर साहब का था, और कि आपने इस मेहमान को जरूर बुलाना है। अब जिस दिन फंक्शन था एम्बेसी के अंदर, तो वो उनका मिस्र का नेशनल डे था, और उन्होंने अपने मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक के एम्बेसडर्स को बुलाया हुआ था। तो जाहिर है कि थोड़ी सी एंजाइटी होती है, फंक्शन की इतनी बड़ी डिग्निटीज थी वहाँ पर। तो GM मेरे पास एक बड़ा मेहरबान मतीन सा चेहरा था, तो उन्होंने कहा मैं GM सिकंदर हूँ, आपका पैगाम मुझे मिला था, तो मैं हाजिर हुआ हूँ। अपनी मिसेस को मैं नहीं ला सका। मैंने कहा GM सिकंदर साहब, मैं फौरन में सब कुछ भूल भाल कर मैं उनकी तरफ हुई। मैंने कहा आप आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप समझिए, आप आए हैं तो मेरा पूरा बल्तिस्तान आ गया है आपके तो मेरी मोहब्बतों का ये हाल है। मैं दुनिया में जहाँ भी कहीं गई, बल्तिस्तान मेरे साथ गया। मैं मॉस्को में, मैं रूस में गई, तो वहाँ एक मॉस्को न्यूज़ में एक जर्नलिस्ट थी, उसकी शादी एक पाकिस्तानी से हुई थी। तो वो उनका हस्बैंड मुझे जहाज़ में मिला, तो उसने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो उर्दू बहुत अच्छा बोल लेती है, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेती है, मैं आपको अपने घर लेकर चलूँगा, वो आपको बहुत आपके साथ कोऑपरेट करेगी, आपको बहुत कुछ उससे मिलेगा। मैं उनके घर गई जब, तो वो मुझे बता रही है कि मैं साइबेरिया के एक गांव की डिस्क्रिप्शन कर रही है। तो कहती है हम अपने बचपन में अंडों का खेल खेलते थे, हम अंडे बॉईल करके पेंट करते थे। तो मैंने उसे कहा, अंतोनीना, ये सब तो मेरे बल्तिस्तान के खेल हैं। मैं मॉस्को में वापस आई, तो वहाँ जहाँ पर टॉल्स्टॉय पैदा हुआ था, तो उसके वहाँ एक चर्च है उसके पास। तो लड़कियों ने कहा, जिस होटल में हम नाश्ता, जिस रेस्टोरेंट में नाश्ता करते थे सुबह, तो लड़कियाँ मुझसे कहती हैं कि आपने वो नहीं देखा, वहाँ एक चर्च है, उसकी चौकारी इतनी खूबसूरत है कि आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप लोगों ने मेरे बल्तिस्तान की चौकारी नहीं देखी, कि चौकारी होती क्या है। इस रूस की एक झलक की किताब है, ये मैं डिग्री कॉलेज के लिए है कि ये हमारे बच्चों को पता चले
कि यानी ना इसमें सारा कुछ ही है, तो इसमें इन दोनों वाक़यात का जिक्र है। तो बल्तिस्तान मुझसे कभी अलग नहीं है, ना मैंने खुद को ऐसा किया। मैं अब आई हूँ यहाँ तो मैंने देखा है कि बल्तिस्तान वाकई में बहुत डेवलप हुआ है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैंने देखा है कल हम लोग खपलो गए थे तो वो सड़क जो इतनी सी थी कि वहाँ जहाँ गाड़ी जो है वो ऐसे चलती थी कि अगर आप 1 फुट नीचे उतरते हैं तो 1 कदम के ऊपर आप नीचे आपकी गहराई है। तो वो जो बच्चा चला रहा था गाड़ी, मैंने उसको कहती हूँ कि बेटे आप क्या कर रहे हैं, आपने इतनी ऊंची आवाज़ से ये केसेट लगाई हुई है, टेप लगाया हुआ है, आप इसको आहिस्ता करो, देखो रास्ता कितना ख़राब है। और वो हंस रहा है और वो मुस्कुरा रहा है और गाड़ी चलाए जा रहा है। तो वो सड़क बहुत खुली हो गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है, ज़रा उस सड़क पर चलते हुए खतरा नहीं हुआ। लेकिन बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली है, वो आप लोग हैं। बल्तिस्तान के लोग बल्तिस्तानी नहीं बदले हैं, उनमें वही प्यार है, उनमें वही अपनायत है। और अल्लाह करे आप लोग हमेशा ऐसे रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की मोहब्बतों की, एहसान तारिश की, बस मैं इल्म फ़न की, और दुआ करती हूँ कि जिस तरह से यहाँ एजुकेशन है और ये और आगे आता जाए, आप लोगों को आईनी हैसियत मिले, पाकिस्तान अपने मसाइल और बहरानों से निकले। और मेरी ये भी दुआ है कि एक वक्त ऐसा आए कि बल्तिस्तान का कोई बच्चा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। मैं ना देखूँ, मेरे बच्चे ना देखें, लेकिन मेरे बच्चों के बच्चे आगे देखें। और अगर उनसे कोई ये पूछे कि आप वज़ीर आज़म कहाँ से हैं, पाकिस्तान के किस इलाके से हैं, तो वो बताएं कि उनका ताल्लुक स्कर्दू से है। बल्तिस्तान अल्लाह ताला इस मुकाम पर इसके लोगों को इसको ले जाए। यहाँ एक छोटा सी बात और करूँगी कि डॉक्टर इब्राहिम मेरे उस किरदार का, जिसका आने के साथ में मेरे साथ सवाल हुआ कि डॉक्टर इब्राहिम का किरदार नहीं मिला, आप यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब डॉक्टर इब्राहिम ही बन जाएँ। वो मेरा तसव्वुराती किरदार ज़रूर था, मगर मैंने देखा कि बल्तिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर इब्राहिम जैसे किरदार अदा करने वाले हैं। खुदा करे अल्लाह ताला बल्तिस्तान को अपने नवाज़ों में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। पाकिस्तान का ये हिस्सा जिसे आप लोगों ने डोगरों से छीन कर पाकिस्तान के हवाले किया, पाकिस्तान इसकी कदर करे और पाकिस्तान का ये हिस्सा मजबूत से मजबूत करे। इन दुआओं के साथ और आपकी मोहब्बतों के साथ मैं आप खुदा हाफिज़। उनका मज़ामीन के ऊपर, किताब के ऊपर उनका इतना रिसर्च वर्क, इतना तहकीकी अंदाज, बहुत मुबारकबाद हो इन बच्चों को, इन लोगों को बहुत शुक्रिया। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और बस एक आपके लिए जूस है, रिफ्रेशमेंट के लिए जूस पीजिएगा। गुलाम हसन अफसू साहब, आप अपनी किताब